أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم سابقون الاولون. ماشاء اللہ پتہ چلتا ہے نا آپ لوگ کتنے ڈیڈیکیشن ہے آپ لوگوں میں اور کس طرح پڑھنا چاہتے ہیں. اور لوگ لیٹ جوائن کرتے ہیں پھر وہ شروع سے ہی کام خراب ہو جاتا ہے. تو کوشش کیا کریں کلاس میں وقت پہ آنے کی. سب میرے ریکارڈنگ میں بھی آ رہا ہے یہ. میں 6 بجے سے ہی کلاس شروع کر دیتی ہوں. میرا ایسٹرن ٹائم 6 ہوتا ہے, آپ کا 3 ہوتا ہے, انڈیا کا 3:30 ہوتا ہے. باقی جو ہے وہ بھی دوسرے کنٹریز سے بھی ہیں سب لوگ. ہم شروع کر لیتے ہیں اور شیئر اسکرین کرتی ہوں. بک نمبر ہماری 2 چل رہی ہے, ابھی فنش نہیں ہوئی. اور ہم نے لاسٹ ٹائم اس کا لیسن نمبر 8 پڑھا تھا. ٹھیک ہے, تو ہم جب تک اسٹوڈنٹ آتے ہیں ہم پوائنٹس ٹو ریمبر جو ہے ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. لیسن نمبر 8 کے ہیں یہ. صحیح ہے, تو کون پڑھے گا, کون پڑھنا چاہے گا پوائنٹس ٹو ریمبر؟ کوئی انگلش میں اچھا ہے پڑھنے میں, ریڈنگ میں؟ میں ٹرائی کروں. اور کوئی پڑھ رہا ہے کیا؟ کون انگلش میں پوائنٹس ٹو ریمبر پڑھنا چاہے گا؟ چلیے پڑھیے, آپ پڑھیے, کوشش کیجیے جو جی ہم. جی. Points to be points to remember. In this lesson we learn the following. Unlike English, Arabic has 3 numbers: singular, plural and dual. Dual refers to 2 and more than 2 is plural. The dual form ends in ani. Example: baitun baitani, yadun yadani. ٹھیک ہے, تو آپ کیا سمجھیں اس سے, کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ؟ جی, اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ عربک انگلش میں ہمارا کہتا ہے ایک سنگولر یا پلورل ہوتا ہے, لیکن عربک میں 2 ہے, 3 ہوتا ہے. واحد ہے, مثنیٰ ہے, اور جیسے کہ جمع ہے. یعنی 2 کو ڈویل کو مثنیٰ. ہاں, تو ایگزامپل دیجیے کہ بیتون ایک گھر ہے, بیتانی 2 گھر. تو بیتانی ہوگا. ٹھیک ہے, نون کے نیچے کسرہ ہوگا. اور اس کی ساؤنڈ جو ہے وہ ایسے آ نہیں آئے گی ساؤنڈ. جی جی, آنی ساؤنڈ ہوگی. ٹھیک ہے, بیتانی بیتن سے بنا ہوا ہے. اگر آپ کا یہ نومینیٹو فارم میں یہ مرفوع ہے تو یہ بھی مرفوع ہے. بیتانی بھی کیا ہے, یہ بھی مرفوع تھا نا جس سے بنایا آپ نے. مرفوع کا مطلب سمجھتے ہیں کہ اس کے اوپر دمہ آ رہا ہے, 1 دمہ یا 2 دمے ہو تو وہ مرفوع ہوتا ہے, نومینیٹو فارم میں ہوتا ہے. تو یہ والا بھی آپ کا بیتانی میں نومینیٹو فارم میں بنا ہے. 3 فارمز ہوتی ہے نا اعراب کے لحاظ سے. 3 طرح کا اعراب ہوتا ہے نا, رفع نصب جر ہے نا. تو یہ رفع ہے, یہ رفع ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بھی رفع ہی ہے, لیکن یہ ساؤنڈ سے ہے, یہ حرکت سے ہے. اس کے اوپر اعراب حرکت سے آ رہا ہے, اس کے اوپر ساؤنڈ سے آ رہا ہے. آنی ساؤنڈ آپ نے اس کو کرنا ہے. یدن سے یدانی. اب دیکھیں نون کے اوپر آپ نے زبر نہیں لگانا, ورنہ کیا بن جائے گا, بیتانا. ایسا تو کوئی لفظ آپ نے سنا ہی نہ پڑھ سکتے ہیں نا, بیتانا بن جائے گا تو یہ غلط ہو جائے گا. آپ نے کیا کہنا ہے, بیتانی, آنی ساؤنڈ لگانی ہے, ورنہ بہت ہی برا وہ ہوتا ہے. اچھا, اب یہ لگائی اس لیے جاتی ہیں کیونکہ زبر پڑھنا مشکل تھا تو انہوں نے کسرہ کر دیا, بیتانی یدانی, تو یہ آسانی سے آپ کا فلو ہو جاتا ہے زبان پہ. تو یہ یہی بتا رہے تھے کہ انگلش باقی ساری لینگویج میں کیا ہوتا ہے, سنگولر ہوتا ہے, پلورل ہوتا ہے, بس دیٹس اٹ. بٹ عربی میں کیا ہوتا ہے, عربک لینگویج میں مڈل میں ایک چیز آتی ہے جسے ہم مثنیٰ کہتے ہیں. عربی میں مثنیٰ کہتے ہیں, لیکن اس کو انگلش میں ڈوئل فارم کہتے ہیں. مثنیٰ کہتے ہیں. یہ واحد ہوتا ہے, بیتن واحد ہے یا کیا ہے, بیتن جی واحد ہے بیت. اور بیتانی کیا ہے, مثنیٰ. اچھا, اس کی جمع کیا بنے گی, بیوتن. اور یہ جمع, یہ کون سی جمع ہے, بیوتن, مکسر ہے. اچھا, کیونکہ اس میں آپ کو بیت کا لفظ نظر نہیں آ رہا, بیت کا لفظ اس میں آپ کو نظر نہیں آ رہا, یہ ٹوٹ گیا, بروک ہو گیا, یہ بریک ہو کے بیوتن بن گیا. صحیح ہے, تو یہ بتون ہے. جیسے کتابن, کتابانی اور کتبن. ابھی اس کا اگر آپ بنائیں گے یدن یدانی تو جمع کیا بنے گی,
ऐदी, कुरान मजीद में आता है ना ऐदीहिम, कुरान मजीद में आप बार बार पढ़ते हैं। तो ऐदुन क्या होता है, ये यदन की जमा होती है, यदानी डुअल फॉर्म होती है और उसकी जमा मुकस्सर बनती है ऐदी, ऐदुन। अच्छा, फिर फी ऐदीहिम, फी ऐदीहिम का क्या मतलब होता है, फी ऐदीहिम कोई बताएगा? उनके हाथों में। उनके हाथों, तो ये ऐदिन है, ठीक है। तो ये ऐदी, देखिए अभी से आप ट्रांसलेशन करने लगे, फी ऐदी, फी का मतलब में, ऐदी का मतलब हाथों, ठीक है। और ये क्या है, उनके हाथों में, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है ऐदीहिम, ये इजाफी बन रहा है क्योंकि काकी का तर्जुमा आ गया ना, तो फी ऐदीहिम, तो उनके हाथों में, तो फी जो है, फी की वजह से वो ऐदी हो गया, वैसे वो ऐदुन होता है, जैसे यदुन है ना तो ऐदुन होता है जमा, और इसका डुअल फॉर्म यदानी। आप कैसे बनाते हैं, इसको जबर में चेंज करके अलिफ नून जेर लगा देते हैं, यदानी बन जाता है। इसको आपने जबर में चेंज किया था, अलिफ नून जेर लगा दी, बैतानी बन गई। तो बुयूतुन जो है वो जमा मुकस्सर है। जमा जो होती है वो 3 तरह की होती है। कौन कौन सी जमा होती है, जरा रिवीजन करवाएं। एक तो जमा मुकस्सर हो गई, जमा सालिम, जमा सालिम 2 तरह की होती है। जमा देखें, जमा की 2 किस्में होती हैं, इसको समझ लें। जमा प्लूरल, इसकी 2 किस्में होती हैं, मेन 2 किस्में होती हैं। एक होती है आपकी सालिम और एक होती है ब्रोकन, ठीक है ना। ब्रोकन को क्या कहते हैं, मुकस्सर, जी। ठीक है ना। ये साउंड प्लूरल है, ये मुकस्सर है, ठीक है। अब इसकी आगे फर्दर, मैंने कहा था ना 3 किस्में होती हैं जमा की, तो इसकी फर्दर 2 हो जाती हैं। तो इसकी फर्दर 2 कौन सी होती हैं, मुज़क्कर और मुअन्नस, मुज़क्कर एंड मुअन्नस, इसकी एक ही होती है। मुकस्सर जो होती है वो तो एक ही होती है, ठीक है। लेकिन जो सालिम होती है उसकी 2 काइंड्स होती हैं, मुज़क्कर, जमा मुज़क्कर सालिम और जमा मुअन्नस सालिम। अब इसकी मिसाल लेते हैं, जमा मुज़क्कर सालिम की क्या मिसाल होगी, ये तो मुकस्सर की मिसालें थी ना, इस तरह मुस्लिमूना, मुस्लिमूना। अब मुस्लिमुन मुज़क्कर है ना, मुस्लिमुन जी, मुज़क्कर है ना, तो उसकी जमा क्या बनेगी, मुज़क्कर ही बनेगी। मुस्लिमातिन। हाँ, अच्छा, अब एक बात, अगर ये तो मुज़क्कर सालिम है ना, सालिम क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि वाहिद का लफ्ज आपको मुस्लिम यहाँ पे नजर आ रहा है, जी, आ रहा है ना, मुस्लिम यहाँ पे आपको नजर, आगे आपने ऊना साउंड लगा दी। मुकस्सर में ऐसा नहीं होता, मुकस्सर में आप देखें यदुन था तो ऐदुन हो गया, टूट गया लफ्ज, बैतुन था तो बुयूतुन, किताबुन से कुतुबुन हो गया, तो वो लफ्ज टूट जाता है, इसलिए उसको लेकिन इसमें नहीं टूटता, मुज़क्कर सालिम में भी नहीं टूटता, मुअन्नस सालिम में भी नहीं टूटता। अब एक मुअन्नस सालिम की मिसाल दें, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतूना तो नहीं होगा, हाँ सही नहीं, बात है, आतिन लगता है ना, आतिन लगता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुस्लिमातुन। हाँ। कुछ लोग मुस्लिमूना, मैं कल भी पढ़ा रही थी किसी को, तो मुस्लिमतूना, तो वो मुज़क्कर के लिए होता है, ऊना साउंड मुज़क्कर के लिए होता है, इसमें आपकी अलिफ ता लगती है, ठीक है। तो ये आपका मुस्लिमतुन से मुस्लिमातुन बन जाता है, ठीक है। लेकिन एक बात इसमें नोट करें कि जो मुस्लिमतुन था उस पे भी 2 दम्मे आ रहे थे और इस पे भी 2 दम्मे आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन मुस्लिमुन पे 2 पेश आ रहे थे, मुस्लिमीना में 2 मुस्लिमूना में 2 पेश नहीं आए थे। वो है तो वो भी रफ़ई हालत, रफा में है, वो मरफू इस समय, बट उसमें ऊना साउंड आ रही है। साउंड कहाँ कहाँ आती है, साउंड 2 जगह पे आती है, एक डुअल फॉर्म में आती है और एक जमा मुज़क्कर में आती है, बस। यहाँ पर भी आपका हरकत से राब आ रहा है, मुस्लिमातुन, मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, वो आप चेंज करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या है, मुस्लिमूना और मुस्लिमानी, यहाँ पर आपका तनवीन नहीं आ रहा, साउंड से आपने इसको पहचानना है कि ऊना साउंड जो होती है ये रफ़ई हालत होती है, और उसके बाद जो आपका मुस्लिमानी साउंड होती है वो भी रफ़ई हालत होती है। ये मुस्लिमुन से बना है, और जो आप मुस्लिमानी बनाते हैं वो भी मुस्लिमुन से ही बनता है, मुस्लिमानी मिडल में, मुस्लिमुन, मुस्लिमानी, मुस्लिमूना, मुस्लिमतुन, मुस्लिमतानी, मुस्लिमातुन,
ٹھیک ہے. اور اگر جمع مکسر ہو جیسے بیتن ہے تو اس کا کیا ڈول فارم بنے گی؟ بیتن. بیتانی بیتانی. آپ دیکھیں بیتانی میں بھی آپ کا تنوین نہیں آ رہا, ساؤنڈ آ رہی ہے, جی ساؤنڈ سے اعراب آ رہا ہے بیتانی. بٹ یہ بیتن سے بنا ہوا ہے تو یہ نومینیٹو فارم ہی ہے, یہ آپ کا مرفوع ہی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کی جمع جو بنے گی نا اس پہ آپ کو نظر آ جائے گا اعراب بیوتن, اس پہ آپ کو پتا چل جائے گا کہ اس کے پر حرکت آ گئی ہے تو یہ نومینیٹو فارم ہے. بیوتن بیتن. یہاں پہ دیکھیں آپ کو, یہاں پہ بھی آپ کو ساؤنڈ ہے, یہاں پہ بھی ساؤنڈ ہے, دو جگہ پہ ساؤنڈ آ رہی ہے, باقی سب جگہ حرکت آتی ہے. صرف دو جگہ ساؤنڈ آئے گی, ایک آئے گی یہ آپ کا ڈوئل فارم میں اور ایک جمع فارم میں. اور جمع بھی مذکر کی, مذکر کی جمع جب بنتی ہے تو اس میں اونا ساؤنڈ اور مسلمینا اینا ساؤنڈ آتی ہے. نون پہ زبر آئے گا, نون کے نیچے زیر آئے گا تو وہ علامت ہے ڈوئل کی, نون پہ زبر آئے گا تو وہ علامت ہے جمع کی. جب بھی نون پہ زبر دیکھیں وہ جمع ہی ہوتا ہے لفظ, اور نون کے نیچے زیر دیکھیں وہ آپ کا کیا ہوگا, وہ آپ کا ڈوئل فارم ہوگی. بیتینی بھی کہیں نا, بیتانی بیتینی بیتینی, تو وہ بھی نون کے نیچے کسرہ آ رہا, وہ بھی ڈیو. اچھا اس کو ابھی چھوڑ دیتے ہیں, آگے چلتے ہیں. دا ڈوئل آف ہاذا از ہازانی اینڈ آف ہاذی ہی از ہاتانی. یہ سمجھ آیا آپ کو؟ جو اشارے ہوتے ہیں وہ ان کی بھی ڈوئل فارم ہوتی ہے, پلورل ہوتی ہے. یہ سنگولر ہے, یہ ڈوئل ہے, اور اس کا پلورل کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, ہاذا ہازانی. آگے کیا ہوتا ہے جمع, جمع کیا ہوتی ہے ہاذا ہازانی, ہاؤلائی ہاؤلائی. ہاؤلائی. ٹھیک ہے نا. اور یہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ہوتی ہے, دونوں کے لیے, یہ دونوں کے لیے ہوتے ہیں مذکر مؤنث. جبکہ ڈوئل فارم جو ہوتی ہے وہ مذکر کی ہزانی ہوتی ہے اور اس کی ہاتانی ہوتی ہے حاضی کی. واحد بھی الگ الگ ہے, ڈوئل بھی الگ الگ ہے. ٹھیک ہے. لیکن جمع دونوں کی مذکر مؤنث کی ایک ہی بنی. اچھا اگلی بات وہ کر رہے ہیں کہ جب آپ کا یہ والا ڈوئل فارم میں آئے گا تو یہ بھی ڈوئل فارم میں آئے گا. صحیح ہے. یہ میسکولین ہے, یہ ہاذا سے ہازانی بنا ہوا ہے تو آگے کتابانی آیا, دونوں ایکول ہونے چاہیے. اچھا اب مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیا بن رہا ہے آپس میں, ہازانی کتابانی, آپس میں یہ کیا بن رہے ہیں, مرکب کون سا بن رہا ہے؟ مرکب توصیف کیا رہا ہے مرکب نہیں ہازانی یہ جملہ بنا یہ اشاری نہیں ہوا, پتہ نہیں توصیفی لگ رہا ہے نا. تو صفی جب دیکھیں ایک اشارہ آ جاتا ہے نا تو پہلی بات تو یہ کہ وہ اشاری ہوتا ہے نا. ہاں تو ہاں کیا یہ اشاری بن رہے؟ جی میوٹ کریں, کس کے پاس ایمبولینس آ گئی ہے. اچھا یہاں پہ آپ کا یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ مرکب اشاری بن رہا ہے؟ نہیں بن رہا. کیا بن رہا ہے؟ توصیفی لگ رہا ہے نا, پتہ نہیں. ابھی ہاذا سے نہیں، لگ رہا ہے کہ جملہ اشاری ہے, کنفیوز ہو گئے ہم. ہاں ہاذا سے لگ رہا ہے کہ یہ اشاری ہے کیونکہ ایک اشارہ آ گیا ہے, چاہے ڈوئل فارم میں آ گیا, چاہے جمع فارم میں آ گیا, چاہے ہاذا آ گیا, وہ لگ رہا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ مرکب اشاری بنے گا. بٹ مرکب اشاری کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہوتی ہے؟ شارون الہی دیکھنا چاہیے ہمیں, وہ دیکھنا چاہیے. تو وہ کیسا ہونا چاہیے؟ وہ ال کی صورت میں لگے گا. ہاں تو اس میں تو ال نہیں آ رہا, تو یہ نہیں مرکب اشاری نہیں بنے گا. پچھلی دفعہ یہی تو چیز ہوئی تھی نا کلاس میں, کہ یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہاں مرکب اشاری بنانے کے لیے آپ کو الف لام بھی چاہیے. جی ہازان الکتابانی ہوگا تو یہ مرکب اشاری بنے گا. ذالک الکتاب مرکب اشاری ہے, اس میں الف لام آتا ہے. ذالک کا کتاب میں الف لام نہیں آ رہا, یہ مرکب اشاری نہیں ہے. اسی طرح آپ کا یہ والا جملہ بھی بن گیا باجی, یہ جملہ بن گیا ہے, یہ مبتدا ہے, یہ خبر ہے. اچھا اس کے بارے یہ بتائیے ذرا, یہ والا کیا ہے, کیا یہ بھی جملہ ہے؟ ہاذان الولدانی. نہیں یہ تو مرکب اشاری, اس میں الف لام آ یہ گیا تو نا. اشاری بن گیا, الف لام آ گیا نا. بس یہی آپ نے ڈیفرنس کرنا ہے. ٹھیک ہے. جی جی جب آپ الف لام دیکھیں گے اشارے کے بعد, چاہے وہ اشارہ جمع کا ہو, ڈوئل کا ہو, واحد کا ہو, مذکر کا ہو, مؤنث کا ہو, آپ نے جب الف لام دیکھ لیا تو وہ آپ کا مرکب اشاری ہوگا. اگر نکرہ آ رہا ہے, الف لام نہیں ہوگا تو نکرہ اسم ہوگا نا, تو نکرہ جو ہوتا ہے وہ خبر بن جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نکرہ اسم ہے. تو ذالک کا کتاب جو ہے یہ بھی نکرہ اسم ہے, تو یہ آپ کی خبر بنے گی.
अगर इसको आपने मुरक्कब इशारी बनाना है तो आपको ज़ालिकल किताबू करना पड़ेगा, ये मुरक्कब इशारी बनेगा। तो इस चीज को आपको बार बार रिवाइज कराने की जरूरत है। इसको समझ लें अच्छी तरह कि जब इशारा के बाद नकिरा इसम आएगा ना, विदाउट अलिफ लाम नकिरा होता है, वो जब आएगा तो वो खबर बनेगा उसकी, ये मुब्तदा बन जाएगा, ये खबर बन जाएगी, ये जुमला बन गया है, ठीक है, ये जुमला बन गया है। लेकिन जब इसे उसके हम जुमला बाद, इस्मिया कहेंगे? हाँ इसे क्या जुमला कहेंगे? क्योंकि इसम से शुरू हो रहा है ना। बाजी मुझे एक सवाल है, तो चारों पहलू देखना है ना, आदत देखना, जींस देखना, उस्सत देखना है हाँ ना, जुमले हाँ, तो ये तीन पहलुओं में बराबर है ना। जो मुब्तदा और खबर होता है वो 3 पहलुओं में बराबर होता है। मुब्तदा खबर जो होता है और मुरक्कब इशारी जो होता है वो चारों में बराबर होता है। मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफी जो होता है वो चारों में बराबर होता है। एराब में भी बराबर होता है, और दूसरी चीज वो जेंडर है उसमें भी बराबर होते हैं, और फिर अदद में भी बराबर होते हैं, और वुसत में भी बराबर होते हैं। कौन बराबर होते हैं? चारों में कौन बराबर होते हैं? मुरक्कब इशारी, मुरक्कब तौसीफी। हाँ, मुरक्कब इशारी भी बराबर होते हैं चारों में, ठीक है, और मुरक्कब तौसीफी भी इक्वल बैलेंस। मुरक्कब इशारी प्लस और एक और कौन सा होता है? मुरक्कब तौसीफी। ये चारों हालतों में इक्वल होते हैं। मुरक्कब तौसीफी में एक सिफ्त का होना बहुत जरूरी है और एक नाउन होगा पहले, ठीक है, वो भी याद रखना है। तो ये तौसीफी है, तो ये चारों उसमें बराबर होंगे। बट ये वाले जो होते हैं, अब इसको देख लें आप, एराब में क्या है? ये मरफू है, मैंने बताया ना कि ये रफा की हालत है। आजानी, हाजा से हाजानी बना हुआ है, तो हाजा भी रफई हालत है और ये भी रफई हालत है। तो ये किताबानी भी रफई हालत है ना। आनी साउंड जो होती है ना वो रफई हालत होती है। बाजी इसके जुमले, इसका भी 3 पहलू लिखिए ना आप। इसके जुमले 3 हाँ मैं लिख रही हूँ ना। तो सबसे पहले एराब को देख रहे हैं ना, दोबारा से लिखूं यहाँ पे। एराब में क्या है? ये आपका दोनों मरफू हैं, आप दोनों मरफू हैं, दोनों मरफा में। मैंने आपको बताया इसके आपको हरकत नजर नहीं आएगी, इसको आपने साउंड से पहचानना है कि आनी साउंड जो होती है वो रफई हालत होती है, ठीक है। तो ये भी रफई है, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, एराब हो गया। अब जेंडर में देखें, जेंडर में बैलेंस है, ये मुज़क्कर है, मुज़क्कर, ठीक है। अदद में देखें दोनों बराबर, जी मुसन्ना मुसन्ना जी, मुसन्ना मुसन्ना वर्ग। वुसत में देखें जी दोनों भी मरफा है, दोनों मारफा है, नकरा है, दोनों नकरा नहीं हो सकते। मारिफा एक है, मारफा है, एक नकरा है, एक ऑपोजिट है, वुसत में ऑपोजिट है। मुब्तदा खबर वुसत में ऑपोजिट होते हैं। अगर चारों में बराबर कर देंगे ना, इसको भी मारफा कर देंगे, इसको भी मारफा कर देंगे, तो वो तो फिर यही बन जाएगा ना, मुरक्कब इशारी और मुरक्कब तौसीफी। तो इसको वुसत में जाके ऑपोजिट करेंगे। 3 में भी ये इक्वल है, 3 में आपने देखा ये इक्वल है, अदद में भी इक्वल है, जेंडर में भी। माइक म्यूट करें, किसका शोर आ रहा है? या तो शोर ना करें या फिर माइक म्यूट रखें। तो एराब में ये क्या थे? दोनों मरफू थे। जेंडर में ये दोनों मुज़क्कर थे। अदद में ये दोनों मुसन्ना थे। वुसत में ये मारफा है, ये नकरा है, इसके ऊपर अलिफ लाम नहीं है, ये कैसे मारफा हो सकता है? सही नहीं। अलिफ लाम आएगा तो मारफा होगा, जब अलिफ लाम आएगा तो फिर दोनों मारफा हो जाएंगे, ये भी मारफा ये भी मारफा, बैलेंस हो गए, तो फिर तो मुरक्कब इशारी बन जाएगा, मुरक्कब इशारी बन जाएगा। इसमें इशारा भी मारफा होते हैं ना? बिल्कुल, इसमें इशारा मारफा होता है, तभी तो मुब्तदा बन रहा है ना जी। मारफा ही मुब्तदा बन सकता है ना, नकरा तो मुब्तदा नहीं बनता, मारफा मुब्तदा बनता है और खबर नकरा बनती है। अगर आपने इसको मारफा बना दिया अलिफ लाम लगा के, तो ये मुरक्कब इशारी बन जाएगा। आपने वुसत में अपोजिट रखने, इक्वल नहीं करने, इसको मारफा रखना है, इसको नकरा रखना है, अपोजिट रखना है। अगर दोनों मारफा कर देंगे, इसको भी मारफा, ये नकरा है भाई, जब इसके ऊपर अलिफ लाम आएगा तब ये मारफा बनेगा, जब तक अलिफ लाम नहीं आता ना उनके ऊपर, वो नकरा ही रहता है। किताबानी क्या है? नकरा है ना, अल किताबानी मारफा है ना, किताबानी। जी जी। तो किताबुन से बना हुआ है ना किताबानी, और इसम इशारा तो होता ही मारफा है। तमाम ज़मायर, देखिए मारफा कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक तो ये अलिफ लाम वाला इसम जो होता है वो मारफा होता है, ये हो गया ना एक मारफा तो ये हो गया।
सही है ना, अलिफ लाम लगा हुआ, ये मार्फा है। दूसरा मार्फा क्या होता है, वो आपका इसम इशारा मार्फा हो गया। इसमें इशारा, फिर अलम, इसम ज़मीर और अलम। अलम जो होता है ना, अलम क्या होता है, आपका मेरा सबका नाम जो होता है वो मार्फा, स्पेसिफिक नाम जो है। प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन जो होते हैं, जो किसी के, मौसूल। हाँ। तो ये 4 चीजें होती हैं, ये मुब्तदा बन सकती हैं। कौन कौन सी, आपका अलम, नंबर 1 अलम, 4 चीजें जो है वो आपकी मुब्तदा बन सकती हैं। अलम भी बन सकता है, और आपका मौरफ बिल लाम, इसको मौरफ बिल लाम इसम कहते हैं। अगर नाम याद नहीं होता तो अलिफ लाम वाला इसम कर ले, याद हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। मौरफ बिल लाम यानी इसको मार्फा बनाएगा, ये नकरा था और वलादानी था ये, और इसको अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाया गया। ये वलादानी था असल में, लेकिन इसको हमने अलिफ लाम लगा के मार्फा बनाया, तो ये आपका मार्फा हो गया। तो ये भी मुब्तदा बन सकता है। तो अलिफ लाम वाला इसम जो होता है वो भी आपका मार्फा बन सकता, मुब्तदा बन सकता है, क्योंकि वो भी मार्फा है। फिर इसम इशारा भी आपका मार्फा होता है, इसलिए तो मुब्तदा बना रहे हैं ना उसको। इसम इशारा जो होता है वो भी मार्फा होता है, और इसम ज़मायर जो होते हैं, इसम ज़मीर, वो भी सारे क्या होते हैं, वो भी मार्फा होते हैं। जैसे हुआ, हुमा, हुम, तो ये सारे क्या बन जाते हैं, ये वाले ज़मायर जो है ना, ये सारे मार्फा भी हैं, मरफू भी हैं, तो इनको हम मुब्तदा बना लेते हैं। जहां भी आएंगे ये मुब्तदा बनेंगे, जुमले के शुरू में होने चाहिए। बात समझ आई? कोई समझाएगा इसी बात को कि यहाँ पर ये इसको मुब्तदा खबर क्यों बनाया, मुरक्कब शारी क्यों नहीं बनाया? मैं बताऊं माँ जी? बताएं। जी, यहाँ पे हाजानी किताबानी, अभी हमने देख लिया कौन कौन सी चीजें मार्फा होती हैं। हाजा जो है वो इसमें इशारा है, तो ये इसलिए जो है ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। और किताबानी जो है ये इसमें नकरा है, और दोनों ड्यूल फॉर्म में हैं। तो जब हम इसको मुरक्कब कोई भी बना हुआ होगा तो हम उसको चेक करेंगे कि वो कितनी हालतों में बराबर है। अगर जो 3 हालतों में बराबर है और आखिरी हालत इसकी जो है वो, जिसमें इसकी जो है वो वुसअत आ जाती है, अगर उसके अंदर ये इक्वल नहीं है तो ये हमारा मुरक्कब ताम होगा, यानी कि हमारा जुमला होगा ये। तो इसमें हम यही देख रहे हैं कि हाजानी जो है वो ये दोनों रफा हालत के अंदर, ठीक है, आनी साउंड के साथ हैं। तो आनी का मतलब है रफा साउंड, तो दोनों आर आर हो गए। हम जिन्स देखेंगे, दोनों मुजक्कर हैं, ये भी मुजक्कर ये भी मुजक्कर। अदद देखेंगे तो ये भी डुअल के लिए है, ये भी डुअल के लिए है, मुसन्ना मतलब 2 के लिए है। और जब हम वसत देखेंगे तो ये हाजा की वजह से ये प्रॉपर हो गया, ठीक है। और ये किताबानी के आगे कोई अलिफ लाम नहीं लगा, कुछ भी नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है, ये कॉमन नाउन हो गया। तो मतलब ये नकरा हो गया। तो ये मार्फा जो है वो मुब्तदा होता है, और नकरा जो खबर जो होती है वो नकरा होती है। तो इस तरह ये मुब्तदा और खबर के साथ ये जुमला बन गया हमारा। तो यहाँ पे ये ऑपोजिट है, ये मार्फा है और ये नकरा है, ठीक है, नकरा है। अगर दोनों मार्फा हो जाएंगे, यहाँ अलिफ लाम लगा देंगे, यहाँ भी मार्फा ये भी मार्फा, तो फिर आपका क्या होगा, वो बैलेंस होके तो आपका मुरक्कब शारी बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लें, ये आपका मुरक्कब शारी है। अब तालिबानी जदीदानी, ये क्या बन रहा है, कौन सा मुरक्कब बन रहा है? तौसीफी बन रहा है। क्यों तौसीफी बन रहा है? इसको हाँ, चारों में बराबर है। जी। और अगर इसको मैं तालिबानी जदीदानी कर दूं, यहाँ अलिफ लाम लगा दूं, तो ये मार्फा हो जाएगा, ये नकरा हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा, मुब्तदा खबर बन जाएगा, हाँ। जुमला। लेकिन यहाँ पर अभी ये क्योंकि दोनों इक्वल हैं, चारों हालतों में इक्वल हैं, तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहे हैं। ये भी नकरा है और ये भी नकरा है, सही है। यहाँ पर ये मार्फा था और ये नकरा था, तो यहाँ पर ये तालिबानी भी नकरा है और जदीदानी भी नकरा है। अगर इसके ऊपर मैं अलिफ लाम लगाऊंगी तो ये मुब्तदा खबर बन जाएंगे। लेकिन यहाँ पर मुब्तदा क्या बन रहा है, ये ज़मीर बन रही है। ज़मीर मैंने बताया ना, ज़मायर मार्फा होते हैं, यहाँ मैंने लिखवाया है। मैंने कहा था कि ज़मायर जो होंगे अगर वो शुरू में आएंगे तो मुब्तदा बन जाएंगे, तो ये मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर बन जाएगी। हाँ, खबर क्या है, ये खबर है आपकी, ठीक है ना, और ये उसकी सिफ्त है। तो अब आप इनको देखें कि ये जो हैं वो मुब्तदा खबर बन रहे हैं। अगर हुमा तालिबानी, ये आपका जुमला कंप्लीट हो गया। दे आर 2 स्टूडेंट्स, और फिर न्यू लगा दिया आगे, वो उसकी सिफ्त लगा, दे आर 2 न्यू स्टूडेंट्स, तो वो उसकी सिफ्त लगा है, लेकिन जुमला यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। और ये मार्फ है और ये नकरा है,
ये मार्फा तो ये मैम इस नकरा। पूरे कंप्लीट जुमले को हम क्या कहेंगे फिर? जुमला इस्मिया। अच्छा, जुमला इस्मिया क्यों कहेंगे आप ही बताइए? जमीर लगी इस वजह से, इस्म से शुरू हो रहा है, इसलिए शुरू हो रहा है। जी जी। जो जुमला इस्म से शुरू होता है वो जुमला इस्मिया कहलाता है। इंग्लिश में उसको नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं, नाउन से शुरू हो रहता है, नॉमिनल। और आपका जुमला इस्म से शुरू इस्मिया कहते हैं, और जो फेल से शुरू होता है उसको क्या कहते हैं? जुमला फेलिया। जुमला फेलिया कहते हैं। उसके अलग पार्ट होते हैं। इसके जो पार्ट होते हैं वो मुब्तदा होता है और खबर होता है। उसके पार्ट जो होते हैं वो फेल और फाइल होता है। फेल होता है और फिर करने वाला डूअर होता है। तो उसके अलग पार्ट्स होते हैं, इसके अलग पार्ट्स होते हैं। कुरान मजीद में 2 तरह के जुमले आते हैं बस, और कंप्लीट जुमले आते हैं। जो आपके ये मुरक्कब नाकिस होते हैं ना, मुरक्कब तौसीफी, इजाफी, जितने भी नाकिस होते हैं, जारी, ये उस बड़े एक जुमले का जुमला इस्मिया या जुमला फेलिया का पार्ट होते हैं अंदर। उसकी डिटेल बताने के लिए पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको एक मिसाल देती हूँ, अल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर। तो अल्लाहु क्या बनेगा? ये कौन सा जुमला बन रहा है? इसम से स्टार्ट हो रहा है तो जुमला इस्मिया बन रहा है। ठीक है, अल्लाहु अला कुल्ली, ये तो बहुत मशहूर जुमला है ना। कुल्ली, अला की वजह से कुल्लू कुल्ली हो जाएगा, अला कुल्ली। और शैइन, शैइन कदीरुन, कदीरुन आया अभी आप देखिए। तो यहाँ पर ये तो मुब्तदा हो गया ना। अब खबर किधर है? खबर किसको बनाएंगे? खबर क्या होती है? नकरा होती है ना। जी यहाँ भी नकरा थी। ये मार्फा है। मुब्तदा मार्फा और मरफू होता है, और खबर नकरा और मरफू होती है। तो खबर किधर है हमारी? नकरा और मरफू। कदीरुन, कदीरुन खबर है। अगर हम इस जुमले को बीच में से निकाल भी देंगे, अला कुल्ली शैइन, ये निकाल भी दें, तो अल्लाहु कदीरुन कंप्लीट जुमला है। ये मुब्तदा है, ये खबर है, ये मार्फा है, ये नकरा है। ठीक है ना। बाकी 3 चीजों में बराबर है। एराब में देखिए, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है। जेंडर में ये मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। कदीरुन मुजक्कर है ना। अच्छा, उसके बाद आप देखें तो अदद में ये भी वाहिद है, कदीरुन भी वाहिद है। और उसके बाद अगर आप जाएं तो ये वसत पे जाएं तो ये मार्फा, ये नकरा है, तो ये जुमला बन गया। ठीक है। अच्छा, अगर अल कदीरू कर देंगे ना तो ये भी मार्फा, तो ये भी मार्फा, तो फिर जुमला नहीं बनेगा, मुरक्कब तौसीफी बन जाएगा। अगर अल कदीरू कर देंगे, ये मार्फा ये भी मार्फा कर दिया। अच्छा, अब ये अला कुल्ली शैइन जो है ना, कुल्ली शैइन क्या बनता है? मुदाफ मुदाफ लह। वेरी गुड। कुल्लू हमेशा मुदाफ बन के आता है। कुछ वर्ड ऐसे तो हमेशा मुदाफ ही बनना है उन्हें। ठीक है, जैसे ज़र्फ हमेशा मुदाफ बन के आते हैं। बादा, बादू होता है ना, बाद, उर्दू में भी बोलते हैं बाज, ये भी हमेशा मुदाफ। अक्सर, ये अक्सर भी हमेशा मुदाफ बन के आता है। कुल्लू भी मुदाफ। इस तरह कुछ वर्ड्स होते हैं जो हमेशा ही मुदाफ बनते हैं। ज़र्फ तो हमेशा मुदाफ बनते हैं। अच्छा, उसके अलावा मुजाफ कोई भी बन सकता है। नाउन, उसके ऊपर अगर तनवीन नहीं डालेंगे, अलिफ लाम नहीं डालेंगे तो मुजाफ बन जाएगा। तो ये कुल्लू जो है ये आपका मुदाफ है। शैयन मुदाफ, मुरक्कब इजाफी बन गया ना। अब मुरक्कब इजाफी को जब अला से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? पूरे का पूरा ये मजरूर बन जाएगा, वो अला जार। हाँ, वो या इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो बाहर होता है ना, इसको मुरक्कब इजाफी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा मुरक्कब जारी बन जाएगा। तो मुरक्कब जारी जो होता है वो जुमले में क्या बनता है? वो या तो खबर बनता है। अगर ये वाली खबर मौजूद ना हो ना, ये जो खबर ये वाली मौजूद है यहाँ पे, वो वाली मौजूद नहीं होगी तो ये खुद खबर बनेगा। ठीक है। लेकिन अगर खबर मौजूद है तो ये फिर मुतल्लिक़ खबर बन जाएगा। ठीक, खबर की डिटेल बता रहा है। यानी अल्लाह कादिर तो है, लेकिन किस चीज पे कादिर है? अल्लाह कुल्ली शैइन, अल्लाह कुल्ली शैइन पे कादिर है, हर चीज पे कादिर। तो ये डिटेल हो गई ना। यानी खबर के मुताल्लिक़ खबर का मतलब है खबर की डिटेल दे रहा है, वो उसके बारे में खबर से रिलेटेड है और खबर की डिटेल बता रहा है हमें। ठीक है। तो ये जो होते हैं या तो खबर बन जाते हैं अगर ये वाली खबर ना हो। अब इसकी क्या मिसाल देंगी जिसमें खबर ना हो और ये खुद ही बन जाए, मुरक्कब जारी आपकी खबर बन जाए? उसकी कोई मिसाल देंगे? मैं बताती रहती हूँ मिसालें आपको कि वो खबर आ ही नहीं रही और वो क्या बन रहा है? मुरक्कब जारी वहां पे खबर बन रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे जो जुमला पहला कुरान शुरू हो रहा है ना, सूरह अल फातिहा, वो इसी तरह से शुरू हो रहा है।
लिल्लाही। अब इसमें खबर नहीं है, खबर जो होती है वो नकिरा होती है, मरफू होती है और नकिरा होती है। ये मरफू और नकिरा है नहीं है ना, ये तो मुरक्कब जारी है, तो ये मरफू भी नहीं है, नकरा भी नहीं है। तो फिर हमारी इसका मतलब है खबर यहाँ पे है ही नहीं, वो ओमिटेड है यहाँ पे। अब ये क्या बनेगा, ये तो शुरू हो रहा है जुमला इससे, तो ये मुब्तदा बन जाएगा। और हमारे पास चूंकि असल खबर नहीं है मौजूद, तो हमें मजबूरन इसको अब खबर बनाना पड़ रहा है, वरना ये तो मुताल्लिक के खबर होता है। ये जो मुरक्कबे जारी होता है ना, ये मुताल्लिक के खबर बनते हैं, लेकिन अब खबर है ही नहीं, तो मजबूरन इसको हम क्या कहते हैं, कायम मकाम खबर, है ना, शिब जुमला खबर, जिसे आप लोग कहते हैं ना, किसी को पता हो तो, किसी को पता है इसके बारे में, कायम मकाम खबर के बारे में? कायम मकाम का मतलब तो सब्स्टिट्यूट। जैसे एक टीचर चली जाती है ना, और वो क्या कर जाती है, उसके पीछे सब्स्टिट्यूट टीचर को बुलाया जाता है। अगर आप में से कोई टीचर है तो आपको पता होगा, जब आप छुट्टियों पे जाती हैं तो आप, वो स्कूल वाले आपके लिए सब्स्टिट्यूट का इंतजाम करते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट खबर है, ये कायम मकाम है। जैसे कायम मकाम वजीर आजम होता है। एक वजीर आजम अगर किसी मुल्क के दौरे पे जाता है तो पीछे से एक वजीर आजम छोड़ के जाता है अपने लिए, ठीक है। इसी तरह प्रेसिडेंट जाता है तो प्रेसिडेंट, एक ग्रुप इंचार्ज, अगर मैं छुट्टियों पे चली जाऊं तो मैं अपना सब्स्टिट्यूट दे के जाऊंगी आपको। तो ये सब्स्टिट्यूट है, ये असल खबर नहीं है, ये कायम मकाम है। कायम मकाम का मतलब है कि मेरी जगह पे, उसकी जगह पे, खबर की जगह पे। अच्छा, अब ये मुब्तदा है और ये खबर है, इसमें असल खबर जो है वो ओमिटेड है, और ग्रामरियन कहते हैं कि इसमें असल खबर जो है ना, वो आपकी वाजिबुन, वाजिबुन देखा है ना, ये मरफू भी और नकरा भी है। आप बात करें ना, कुछ बोले ना आप लोग, ये यहाँ पे खबर है जो ओमिट कर दी है ये। तो ये था अल्हम्दु वाजिबुन, तमाम तारीफें, तमाम शुक्र, तमाम खूबियां वाजिब हैं किसके लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए। ये पूरा कंप्लीट जुमला बना है। लेकिन कुरान का वॉल्यूम छोटा करने के लिए, चूंकि वाजिबुन भी अंडरस्टूड बात है और साबितुन भी अंडरस्टूड बात है, तो ग्रामरियन कहते हैं ये दो वर्ड यहाँ पे खबर के तौर पे आ सकते थे, लेकिन ओमिट की गए ताकि कुरान का वॉल्यूम छोटा हो जाए, तो हम और लोगों को भी ना पढ़ना पड़े अल्हम्दु वाजिबुन लिल्लाही, फिर हम इसकी तस्बीह करते ना बजाय अल्हम्दुलिल्लाह करने की। समझ आ रही है बीच में आपको बात? तो ये आपकी कायम मकाम खबर बनेगी जब ये असल वाली खबर नहीं होगी, तो फिर जार में जरूर को मजबूरन आपको खबर बनाना पड़ेगा, जिसको हम कायम मकाम भी कहते हैं और शिब जुमला खबर भी कह देते हैं, और ये मुरक्कब जारी होती है। और ये शुरू में भी आए तो ये आपकी खबर ही बनती है, तब भी जुमला इसमें ही बनता है। अगर लिल्लाही शुरू में भी आ जाए ना, जैसे आते हैं, आप पढ़ते भी हैं वलिल्लाहिल हम्द, अभी आपने तकबीरात पढ़ी होंगी तो उसमें वलिल्लाहिल हम्द पढ़ते हैं ना, तो वहां पे वो जो है वो एक्स्ट्रा है, उसका मानी नहीं होता कुछ भी, वो सिर्फ ऐसे ही लगा हुआ है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई आपसे पूछता कैफा हालुक, तो आप क्या कहती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अना बखैर। हाँ नहीं, अना भी अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, आप कहती हैं अना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अना बिखैर। नहीं, उसमें वल्हम्दुलिल्लाह भी आता है ना, जी जी जी। अना बिखैर वल्हम्दुलिल्लाह, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना, अना बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह, तो वो वाव का कोई मीनिंग नहीं होता वहां पे, वो ऐसे ही लगा होता है। हाँ, तो वल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सारी बात है। तो कभी कभी आपकी खबर ओमिट हो जाती है, असल खबर, और वहां पे फिर मुरक्कबे जारी उसकी जगह ले लेता है। तो कभी तो मुरक्कबे जारी अपनी जगह पे आ जाता है खबर की जगह पे, कभी कभी ताकीद के लिए, एम्फसाइज के लिए उसको शुरू में भी लाते हैं। जैसे आप अल्हम्दुलिल्लाह भी पढ़ती हैं, उसमें खबर अपनी जगह पे आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाही, लेकिन वलिल्लाहिल हम्द में ताकीद है। वलिल्लाहिल हम्द का क्या तर्जुमा होगा, अल्लाह के लिए ही हैं तमाम तारीफें। पहला वाला जुमला उसमें क्या है, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, तमाम शुक्र अल्लाह के लिए, तमाम खूबियां अल्लाह के लिए। पहला वाला जुमला अल्हम्दुलिल्लाह जो आप रोज पढ़ते हैं नमाज में। लेकिन जब आप लिल्लाही कहते हैं ना, वलिल्लाहिल हम्द, तो फिर अलहम्द बाद में आ जाता है, खबर बाद में, ये मुब्तदा बाद में आ गया, ठीक है, और ये आपकी खबर पहले आ गई, ये बनेगा खबर ही।
मुब्तदा नहीं बन सकता। तो ये आपकी खबर होगी मुकद्दम और ये आपका मुब्तदा मुअख्खर हो गया। अब इसमें ताकीद आ गई है, अल्लाह के लिए ही हैं तमाम तारीफें। जोर हो गया ना, पहले जुमले में जोर नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह में तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, बस एक आम सी बात है, मुब्तदा है, खबर है, और इसमें आपकी जोर हो गया। तो कभी कभी खबर को शुरू में ले आते हैं। अच्छा, बहरहाल हमारी ये बात हो रही थी और इसमें हमने हुमा को मुब्तदा बनाया, तालिबानी जो है, इन दोनों को मिला के भी आप खबर बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा खबर बन गया, दोनों ही नकरा हैं, दोनों ही मरफू हैं, दोनों ही नकरा हैं, तो आप मिला के भी बना सकते हैं। ऐनल उख्तानी, तो यहाँ पर आपका उख्तानी क्या बनेगा, मुब्तदा, और ऐना को मैंने बताया कि ये शुरू में जो आते हैं मजबूरी में आ रहा है, ये आपकी खबर है। इसको आगे होना चाहिए था ना, इसको पहले होना चाहिए था, लेकिन मजबूरी में इसको शुरू में लाते हैं क्योंकि क्वेश्चन बनाना होता है। अगर आगे लेके जाएंगे तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। अच्छा, हुमा फिल गुरफती, ये मुब्तदा बन जाएगा, फिर गुरफती आपकी जार मजरूर खबर बन जाएगी। अच्छा, अब इसमें पता है क्या है, असल खबर क्या है, कोई बता सकता है इसमें कौन सी खबर जो है वो हो सकती है? ये तो कायम मकाम खबर है ना, तो हुमा मुब्तदा, बताइए। हाँ, नहीं, ये पूरी खबर है ना, फिर गुरफती मुरकब जारी बन के ये आपकी कायम मकाम खबर है। सारे लोग हैं, कोई मुझे बताए यहाँ खबर कौन सी ओमिट हो सकती है? वो दोनों मौजूद हैं किसमें, कमरे में। तो खबर क्या हो सकती है यहाँ पे? अगर हुमा आया है तो आगे क्या लगाएंगे? ये आपका मुब्तदा जो है वो डुअल फॉर्म में है ना, हुमा डुअल फॉर्म में है ना, ये आपको पता है, ये डुअल फॉर्म में है। ये आपका हुआ और हिया का डुअल है ये, ठीक है, दोनों का एक ही डुअल है, हुआ का भी और अच्छा, ये डुअल फॉर्म में, तो आगे भी आपको खबर भी डुअल फॉर्म में लगानी पड़ेगी ना, तो क्या लगाएंगे? गुरफतानी नहीं, वो खबर उसको छोड़ दें, उसको छोड़ दें, वो तो मजबूरी में बनाएगी ना खबर। अब यहाँ पे हमने असल खबर लगानी जो ओमिट की हुई है बीच में से, तो वो हम कहेंगे मौजूदानी, ठीक है। ये भी आपका डुअल है, खबर भी आपकी, ये मार्फा है और ये नकिरा है, समझ आ गई बात को? तो ये आपका मुब्तदा खबर बन जाएगा। हुमा मौजूदानी फिल गुरफती, फिर ये फिर गुरफती खबर नहीं बनेगा अगर ये आपने लगा दिया तो, फिर ये आपका उसकी डिटेल बन जाएगी, यानी उसका मुतालिक खबर बन जाएगा। ये खबर जब असल वाली खबर आपने लगा दी मौजूदानी। अच्छा, एक होगा, अगर एक बच्चे की बात करते हैं हुआ, तो हम मौजूदानी लगाएंगे, ये वाहिद है तो मौजूदानी तो नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे? मौजूदन बनाएंगे, हुआ मौजूदन फिल गुरफती, है ना जी। तो अब आपका ये मुब्तदा हो गया, ये खबर हो गई, असल वाली खबर आपकी मौजूद है, तो यहाँ पर आपकी फिल गुरफती, ये इसका मुतालिक खबर बन जाएगा, फिल गुरफती मुरक्कब जारी होगा, फिर तब आपकी खबर नहीं बनेगी। अगर इसको निकालेंगे तो फिर इसको सब्स्टिट्यूट खबर बनाएंगे, असल खबर ओमिट कर दिए। तो देखें, अंडरस्टूड बात होती है। जब हम कहते हैं ना हुमा फिल गुरफती, तो इसका मतलब यही होता है कि वो दोनों कमरे में मौजूद है ना, तो मौजूद लाने की जरूरत ही नहीं है, मौजूदानी एक लफ्ज खामखा लगाओ बीच में, हुमा वो मौजूदानी फिर गुरफती, तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, उसको निकाल देते हैं और फिर गुरफती को खबर बना लेते हैं। तो अगर ये मौजूद हो जुमले में, जैसे मैंने भी इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर की मिसाल दी, तो उसमें आपकी खबर मौजूद थी तो हमने उसको मुताल्लिक खबर बना दिया। अगर कदीर ना होता तो उसको खबर बना देते उठा के। तो ये बात होती है सारी। तो मौजूदानी, तो ये आपका यहाँ पे ओमिटेड है। अच्छा, आगे पढ़ते हैं। नोट दैट द एडजेक्टिव क्वालिफाइंग अ डुअल नाउन इज आल्सो डुअल। अब यही तो बता रहे हैं वो, ये मैंने अभी यहाँ पे यही तो किया है। नोट दैट द एडजेक्टिव जो होता है, वो जैसे यहाँ पे आप देखें ये एडजेक्टिव है और ये आपका क्या है, ये क्वालिफाइंग नाउन है, ठीक है। ये मौसूफ है। क्वालिफाइंग नाउन कौन होता है? क्वालिफाइंग नाउन मौसूफ होता है। तो ये आपका मौसूफ है, ये सिफ्त है। तो ये एडजेक्टिव है और ये मौसूफ है, ये सिफ्त है। तो ये दोनों मिलकर मुरक्कबे तौसीफी बन रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे। एडजेक्टिव फॉलो करेगा क्वालिफाइड नाउन को,
जैसे अगर ये वाहिद होगा तो ये भी वाहिद होगा. अगर तालिबुन होता तो क्या होता? तालिबुन होता तो क्या होता? जदीदुन. तालिबानी है तो जदीदानी हो गया. अब यहाँ पे मैं तुल्लाबुन तो हाँ उसकी सिफ्त बनानी है जुदुदुन. ठीक है. तो ये इस तरह से होता है, फॉलो करता है. इसको मौसूफ को सिफ्त फॉलो कर रही होती है हर तरह से. जो 4 पहलू आपको बताया ना, एराब, जिन्स, चारों में ये मुरकबे तो सिफ्त जो होती है इसको फॉलो कर. लेकिन खबर 3 में करती है. खबर जो है ना वो 3 में फॉलो करती है मुब्तदा को, चौथे में नहीं करती. ये याद रखना, चौथे में कहती है मैं नहीं करती, वरना मुरकबे तौसीफी बन जाएगा. ठीक है ना. अगर इसको मैं तालिबानी करती हूँ और इसको भी अलिफ लाम लगा देती हूँ तो फॉलो कर लेंगे ना एक दूसरे को. तो अभी यहाँ भी फॉलो कर रहे हैं तो मुरकबे तौसीफी बन रहा है. लेकिन अगर खबर इसको आप जरा बनाएं, इसको आप जुमला बना लें, इसको आप जुमला बना के दे दें मुझे. हुमा को हटा दें और इसको जुमला बनाएं. कैसे जुमला बनेगा ये? क्या चेंजिंग लानी पड़ेगी जी? इसको नहीं, इसे डुअल फॉर्म में बनाए ना, डुअल फॉर्म में बताएं. वेरी गुड. इसको मार्फा कर देंगे, इसको नकरा ही रहने देंगे. ठीक है. तो अभी ये मार्फा नहीं है, ये नकरा है, ये भी नकरा है, तो ये मुरक्कबे तौसीफी है. चलिए अब आते हैं हम आगे. पॉइंट नंबर 2 कौन पढ़ेगा? कम के बारे में. हाँ जी पढ़िए. अच्छा, कम, how many? Note that the noun following come is singular and in the executive case, example, how many books? Kam kitaban. How many cars? Kam sayyaratan. Note that a noun with tanween in the executive case takes an alif which is not pronounced. Example, मतलब वही बता रहे हैं इसके अंदर. ये बताइए क्या बता रहे हैं? जब कम आ जाता है तो उसके बाद जो नाउन आता है, कम आता है. हाउ मेनी मीनिंग्स होते हैं इसके, क्वेश्चन करने के लिए, क्वेश्चन के लिए आता है. ठीक है ना. अच्छा, फिर उसके बाद जो फॉलोइंग नाउन होता है वो क्या होता है? वो जो है वो अलिफ लग के और जब उसके ऊपर जो है वो 2 तनवीन लग जाती है. तनवीन होती 2, तनवीन जो होती है अलिफ लग जाता है. हाँ, नस्बी हालत में हो जाता है वो. अच्छा, जो आपका हाँ ये कम जो है ये तो क्वेश्चन के लिए ना, हाउ मैनी. ठीक है. इसके आगे जो आता है इसको तमयीज बोलते हैं. मैंने आपको पिछली दफा बताया था तमयीज. जैसे उर्दू में तमीज बोलते हैं ना, तो तमीज भी बोल सकते हैं, तमयीज भी बोल सकते हैं. अरबी में तमयीज बोलते हैं. तो ये तमयीज है. अब तमयीज की क्वालिटीज क्या होती हैं? वो वाहिद होता है और मंसूब होता है. मंसूब है ना, मरफू तो नहीं है ना, मंसूब है ना. और नकिरा है, नकिरा है, मार्फा नहीं है. तनवीन लगी है तो नकिरा है. ये इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, वाहिद, मंसूब और नकिरा. कम के आगे जो भी मैम ये आपने क्या कहा था? तमजीज. क्या वो आप लिखे ना, वो आपने क्या कहा था? तमजीज अरबी में क्या? तमीज कह लें, तमीज या तमयीज कुछ भी कह लें. तमीज भी कह सकते हैं. कमीज होती है ना तो तमीज बना लें उसको. ठीक है, इजी करें. कमीज. अच्छा. तमीज. अच्छा, तुम्हें कोई तमीज नहीं है बात करने की? कहते नहीं हम अपने बच्चों को तमीज करो, है ना. तो ये वही वाली तमीज है. अच्छा, अब आप देखें तो ये आपका जो ये कम के बाद नाउन है, ये आपका वाहिद है, मंसूब है, नकिरा है. एक बात इन्होंने और भी बताई है, वो ये बताई है कि जब उसके ऊपर जब वो मंसूब होगा तो जबर तनवीन आएगी ना, नकिरा होगा और मंसूब होगा तो जबर तनवीन आएगी ना उसके ऊपर जी. तो फिर उसके आगे अलिफ ऐड करते हैं. ये रूल है. जब भी देखें किताबुन, अब इसमें आपने क्या किया, सिंपली आपने 2 पेश लगा दिए. लेकिन जब जबर लगाएंगे तो क्या होगा? किताबन होगा. तो हाँ, किताबन. ये इस तरह नहीं लिखा जाएगा, पढ़ा इसी तरह जाएगा, किताबन नहीं. ठीक है, लेकिन अलिफ भी लगाना होगा.
इस अलिफ को पढ़ा नहीं जाएगा, यही तो बता रहे हैं. एंड अलिफ विच इज नॉट प्रोनाउंस्ड, ये नहीं प्रोनाउंस किया जाता, लिखा जाता है सिर्फ, पढ़ा किताबन ही जाता है. और किताबिन, किताबिन, तो ये 3 हालतें हो गई किताबुन की. ये आपकी रफा हो गई, ये नस्ब हो गया, ये जर हो गया. ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है, ये भी वाहिद है. ये मरफू है, ये मंसूब है, ये मजरूर है. तीनों नकरा है या तीनों मारफा है? क्या है? नकरा। नकरा है. तो ये वाली शक्ल आएगी कम के बाद, ये वाली भी नहीं आएगी और ये वाली भी नहीं आएगी. कम के बाद ये वाली शक्ल आएगी, कम किताबन. अब यहां पर देखिए 2 जबर लगे हैं और इसमें अलिफ ऐड नहीं हुआ. इसमें 2 जबर लगे हैं, 2 जबर जब भी लगते हैं तो अलिफ ऐड होता है, लेकिन जब गोलता आती है तो फिर हम अलिफ ऐड नहीं करते. ये एक्सेप्शन है इस रूल का. जब भी 2 जबर लगेंगे नस्बी हालत में, 2 जबर लगेंगे, तनवीन आएगी तो अलिफ ऐड होगा, बट गोलता में नहीं होगा. जन्नतुन, जन्नतन, जन्नतिन ऐसे ही लिखा जाएगा बगैर अलिफ के. तीनों हालतों में सेम लिखा जाएगा. अब देखें यहाँ पे इन्होंने बता दिया आपको, किताबुन, किताबिन, किताबन, ये आपकी रफैया. अच्छा देखिए यहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया अलिफ, यहाँ पे 2 जबर लगाए तो अलिफ ऐड नहीं किया आगे. इसमें तो होता ही नहीं, इसमें तो होता ही नहीं, इसमें भी नहीं होता, इसमें होता है, 2 जबर में होता है तो भी नहीं लगाया. तो ये एक्सेप्शन हो गया ना. बट अ नाउन एंडिंग इन द राउंड ता डज नॉट टेक दिस अलिफ. समझ आ गई ना बात? कितनी इजीली बात चीजें लिखी हुई. अच्छा अब इन वर्ड्स के मीनिंग हमने ये रिपीट कर लेते हैं. अजलतुन क्या होता है? अजल. अजल जो होता है वो क्या होता है? अजल का मीनिंग होता है, उसी से बना हुआ ये. अजल उनका मतलब होता है तेज, फास्ट, है ना. तो चूंकि ये व्हील जो होता है ये तेज चलता है, फास्ट होता है, तो इसलिए इसका नाम अजलतुन, अजलतुन रख दिया. ईदुन फेस्टिवल होता है, सनातुन और नाफिजतुन, सब बूरतुन. इसको अच्छी तरह देख लें लफ्ज को. 2 इसके पर अलिफ देखें, अगर ये वाला अलिफ लाम नहीं होगा फिर तो आपको एक ही तशदीद लगानी है, सब बूरतुन. लेकिन अलिफ लाम लगेगा तो 2 तशदीद आ रही है. तो ये मार्फा है, ये भी मार्फा है. अर्रियालु, रियाल क्या है? करेंसी है. अल-हय्यु क्या है? सिटी कहते हैं या डिस्ट्रिक्ट कहते हैं. सिटी या डिस्ट्रिक्ट को क्या कहते हैं? अल-हय्यु. और इसका प्लूरल भी आगे आ रहा है. फिर उसके बाद ये क्या है? अल-रकअतु, इस नमाज में जो रकत होती है आपकी 2 रकत 4 रकत, वो इसका प्लूरल है रकाआतुन. अच्छा जनाब, अब इनके नाम बता दें. ये क्या है? अस्सबूरा, ये वाला सबूर है. ये क्या है? माइक म्यूट करें, कुछ के माइक खराब है. अन्नाफिज़तु, कुछ की आवाज सही नहीं आ रही, कट रही है. अच्छा यहाँ पे ये क्या है? ये वाला अस्सबूरतु. अस्सबूरतु. अगर इसको बगैर अलिफ लाम के लिखेंगे तो सबूरतुन, सीन पे जबर आएगी, इस पे ये सबूरा. नाम भी रखते हैं लोग, सबूरा तो नहीं रखते, सफूरा वगैरह रखते हैं नाम. तो सबूरा तुन, जब अलिफ लाम लगाएंगे मार्फा बनाएंगे तो इसके ऊपर से फिर ये तनवीन हट जाएगी, यहाँ पर भी एक आ जाएगी, ये सबूरतुन. अच्छा यहाँ पर आपका क्या है? ये क्या है? नकरा बताइए. मार्फा हो जाएगा. ठीक है. अभी अभी सब लोग म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है, या मैं खुद करूं. अब हमने नया लेसन शुरू करना है और एक बंदा आएगा जिसका मैं नाम लूंगी, वो बोर्ड पे पढ़ेगा आके क्लास माइक पे. तो सबसे पहले जो सिस्टर हैं अफसाना आ जाइए. ए से नाम शुरू होता है. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह. चलिए सिस्टर पढ़िए. लेसन नंबर 9. ठीक है. अब ये क्या बन रहा है? कौन सा मुरक्कब? मुरक्कबे जारी, सॉरी मुरक्कबे इजाफी. बाकी लोग म्यूट करें प्लीज, सब लोग म्यूट कर लें. अभी मैंने काफी आपको टाइम दिया ना अनम्यूट रखने का, सब बोल रहे थे लेकिन अभी नहीं बोलेंगे क्योंकि फिर मेरी क्लास नहीं चलेगी. मुरक्कबे इजाफी होगा सर. अच्छा ठीक है, मुरक्कब इजाफी आपने बोला. अब मुरक्कब इजाफी में यहाँ पर क्या होता है? अलिफ लाम आता है.
मुरक्कब इजाफी मुरक्कब जी। इजाफी, मुरक्कब बिल्कुल इजाफी कोई मिसाल दें मुरक्कब इजाफी की मुझे जल्दी से। लाइक कोई भी दे सकते हैं ना, कोई कोई भी दे दें, कोई भी दे दें। पोजेसिव केस की कोई मिसाल दें मुझे जिसमें पोजेशन की बात हो रही हो। लेसन 9 में कोई पोजेशन की बात, रसूल अल्लाह, रसूलुल्लाही, रसूलुल्लाही, ठीक है, रसूलुल्लाही, ठीक है ना। अब ये देखें आप, यहाँ पे अलिफ लाम आ रहा है, यहाँ पे नहीं आ रहा, नहीं आ रहा तो ये आपका क्या है, ये पोजेसिव केस है, ठीक है। तो यहाँ पे तो दोनों तरफ लाम आ रहे हैं ना, ये तो बैलेंस्ड आ रहा है। ये कौन सा मुरक्कब है? मुरक्कब इजाफी। फिर ये भी इजाफी है, ये भी इजाफी है, दोनों इजाफी कैसे हो सकते हैं? सॉरी सर, ये मुरक्कब सॉरी एक हाँ, तरह के होते हैं ना, मुरक्कब इजाफी और मुरक्कब तौसीफी और एक और होता है। अच्छा, इसका मीनिंग होता है अल्लाह रसूल, पोस्टिफी ऐसा आता है ना, अल्लाह मैसेंजर, है ना, ऐसे ही होता है ना। अल्लाह मैसेंजर जी, लेकिन अल्लाह इसमें, के रसूल। हाँ, लेकिन इसमें तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा ना, इसमें तो लेसन यहाँ 9 इजाफा हो रहा है जी, इजाफा हो रहा है। यहाँ कुछ नहीं हो, कोई इजाफा नहीं हो रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। यहाँ पे दो वर्ड है, ये वाला क्वालिफाइंग नाउन है और ये उसका एडजेक्टिव आ गया, दोनों मिलके क्या, दोनों बैलेंस है। तौसीफ, सॉरी मुरक्कब तौसीफी, तौसीफी, इसमें काफी का तर्जुमा नहीं आएगा, इसमें सिर्फ लेसन 9, लेसन 9 नवा सबक, और इसमें क्या है आपका, यहाँ पे कसरा आ रहा है, ठीक है, और यहाँ पे आपका दमा आ रहा है। ये बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रहे एक दूसरे से, दोनों नाउन, ये दोनों एग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। यहाँ अलिफ लाम है, यहाँ भी अलिफ लाम है, यहाँ एक दम है, यहाँ भी एक दम है, यहाँ पे कुछ भी एग्री नहीं हो रहा, ऑपोजिट है सब। तो पहचानने की कोशिश करें। और ये जो बोलने में आपको प्रॉब्लम होती है ना, आप बोलना चाह रही थी, आप तौसीफी बोलना चाह रही थी, लेकिन आपने क्या बोला, आपने इजाफी बोल दिया ना, ऐसी बात थी ना। तो आप माइक पे आके तो कोशिश किया करें, हमेशा माइक पे आए और कुछ ना कुछ बोलें सब लोग, ताकि आपकी गलती निकले। चलिए आगे पढ़िए। अल मुदीरु कम तालिबन जदीदन फी फसलिका या शेखु। कम, कम किसके लिए, हाउ मैनी, तालिबन, ये तालिब स्टूडेंट की तादाद पूछी जा रही है, हाउ मेनी स्टूडेंट आर न्यू इन क्लास, शेख की क्लास में, टीचर की क्लास में कितने नए स्टूडेंट हैं। नो नो, कम तालिबन जदीदन, तालिबन जदीदन का मतलब क्या है, न्यू स्टूडेंट्स, न्यू स्टूडेंट्स, हाउ मेनी न्यू स्टूडेंट, हाँ, फी फसलिका, न्यू स्टूडेंट, हाँ, इन टीचर्स क्लास, नो नो, इन योर क्लास, फसलिका, फी फसलिका, इन योर क्लास, ठीक है। ओ शेख, शेख कौन होता है, जो टीचर होता है उसको शेख कहते हैं, ठीक है ना। आलिम को कहते हैं शेख, बूढ़े आदमी को भी कहते हैं और आलिम को भी कहते हैं, इज्जत के लिए शेख कहते हैं, ठीक है। तो ओ शेख, तो शेख से पूछा जा रहा है कि आपकी क्लास में कितने नए स्टूडेंट हैं। मुदीर क्लास में आया है, मुदीर कौन होता है, प्रिंसिपल, वो क्लास में आया और उसने पूछा है कि टीचर से पूछ रहा है कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स इन योर क्लास। ओ शेख, आगे वो क्या जवाब दे रहे हैं, अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु, अल मुदर्रिसु टीचर, फीमेल मुदर्रिस है, इसमें जो मुदर्रिस है वो फीमेल है, ये फीमेल है, नो सॉरी, वो एक्चुअली इसमें जेर आ रहा है ना, तो हाँ कसरा, अल मुदर्रिसु, जी हाँ सॉरी कसरा, अल मुदर्रिसु फी अशरतु तुल्लाबिन जुदूदिन, in our class, अशरा मतलब 6 और 10 होगा, 10 होगा ना उसका ना, अशरा मतलब 10 होगा, 10 स्टूडेंट आर न्यू इन आवर क्लास। सही करके इंग्लिश का जुमला बनाए, इंग्लिश में नहीं बना सकते, उर्दू में बनाए। हमारी क्लास में 10, हमारी क्लास में 10 नए स्टूडेंट हैं। हमारी क्लास में नहीं, फी उनकी क्लास में नहीं, there are 10 new students in it,
फी ही का मतलब होता है इन इट, इन इट। तो ये हो की जमीर कहाँ जा रही है? क्लास की तरफ। फी फसली की तरफ जा रही है। यहाँ पे फी फसली है, यहाँ पे फसली की बजाय क्या आ गया? हु आ गया, ठीक है, तो फी ही आ गया। तो ये हु की जमीर पीछे फसल की तरफ जा रही है। इन इट का मतलब ये है कि क्लास, इन क्लास। तो देर आर अपनी तरफ से लगा रहे हैं, देर आर 10 न्यू स्टूडेंट्स इन इट। तो आप उर्दू में कैसे करेंगे? इसमें 10 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इसमें क्लास 10 को ना बोल, क्लास ना बोल करके उसको सिर्फ इशारा की तरफ हाँ, बताओ। इशारा जमीर जा रही है उसकी तरफ, प्रोनाउन जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे कि 10 न्यू स्टूडेंट हैं, इसमें 10 उसमें 10 नए स्टूडेंट हैं। आगे पढ़िए। अल मुदीरु मिन ऐना हुम अकुल्लुहुम मिन बलदिन वाहिदिन। मिन ऐना हुम, आप कहाँ से हैं? होम, वेयर आर दे फ्रॉम? ओके, वेयर आर दे फ्रॉम मतलब स्टूडेंट्स के बारे में पूछ रहे हैं जो नए स्टूडेंट हैं। हाँ, तो लाभ की तरफ जा रही है मतलब ना वो उनके। कहाँ से हैं, वो जी। सब कहाँ से हैं? आगे। कुल्लुम वो सब, बलदिन वाहिदिन, वाहिदिन अलग अलग जगह से ही बोलेंगे क्या सब? एक ही जगह से, एक ही कंट्री से। अच्छा, एक ही जगह से, वो सब एक ही जगह से। हाँ, एक ही कंट्री से हैं, एक ही शहर से हैं। और मिम बलदिन वाहिदिन, तो एक ही शहर से हैं। अच्छा, अब देखें यहाँ पे जो है क्वेश्चन के लिए आ रहा है ना, क्वेश्चन मार्क भी लगा हुआ है। तो प्रिंसिपल, हाँ, तो क्या क्वेश्चन में करे ना, जवाब तर्जुमा करे ना, क्या वो सब एक ही जगह से हैं, एक ही शहर से हैं। आगे मुदर्रिस क्या कह रहे हैं? मुदर्रिसु ला हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफतिन मिनहुम सलासतु। बस यहाँ पे आपके स्टॉप आ गया, अब इसको रुक देंगे आप। ओके, मुख्तलिफा, ये ओके, यही पढ़ेंगे, ठीक है। ला नहीं, वो सब बिलादिन मुख्तलिफा का मायने नहीं करना। बलद की जमा क्या है? बिलाद। शहर है जी। हाँ, शहर, तो सिटीज। मुख्तलिफन, मुख्तलिफ मतलब डिफरेंट, अलग अलग। अच्छा, अलग अलग शहर से, वो सब अलग अलग शहर से हैं। बिल्कुल। आगे। मिनहुम सलासतु तुल्लाबिन मिनल फिलीपीन, ठीक है ना? अच्छा, मिनहुम सम ऑफ देम, मिनहुम का मतलब होगा सम ऑफ देम, उनमें से कुछ बोलेंगे ना उर्दू में। उनमें से कुछ या फिर सलासा, तो 6, उनमें से 6 स्टूडेंट, 6 जो तालिब हैं वो फिलीपीन से हैं। अच्छा, उनमें से 3 स्टूडेंट जो हैं फिलीपीन से हैं। सलासा मतलब 3, ठीक है। व अरबतु तुल्लाबिन मिनल याबानी, और 4 स्टूडेंट या जापान से हैं। और तालिबानी मिनस सीनी, और 2 स्टूडेंट चीन से हैं। गुड। व तालिबुन वाहिदुन मिन मालेशिया, और एक स्टूडेंट मलेशिया से, ठीक है। और उनमें से एक स्टूडेंट मलेशिया से, ठीक है ना? अभी मैं किसी और से पढ़वाती हूँ, आप गौर से सुनिएगा, ठीक है? कौन आएगा अभी नेक्स्ट? बता रही हूँ मैं, अख्तर बेगम, जल्दी से। वही, और प्रैक्टिस करनी है आप घर जाके ना, मतलब क्लास के अलावा भी पढ़ा करें, थोड़ी रीडिंग किया करें। सिर्फ कुरान पढ़ना इबादत नहीं है, ये भी इबादत है, क्योंकि हम कुरान सीखने के लिए सब ये कर रहे हैं, कुरान को समझ के पढ़ने के लिए। चलिए पढ़िए, आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल मुदीरु कम तालिबन जदीदन फिल फस्ली या शेख। फसली का, तो मुदीर क्या कह रहे हैं? मुदीर कह रहा है कि आप कितने तालिबे इल्म है न्यू आपके नए तालिबे, सॉरी, कितने नए तालिबे आपके फसल में, मतलब क्लासरूम में है, आपकी क्लास में? ओ शेख, ये शेख मतलब, या मतलब शेख ही कह लें ना, ओ शेख ही कह लें, कोई बात नहीं।
आगे शेख मतलब नाम है शायद ना? नहीं, या। नाम नहीं है, टीचर को इज्जत से बुलाते हैं ना शेख, अच्छा शेख। उस्ताद भी कहते हैं, या उस्तादू तो नहीं कहेगा ना वो, अब वो मुदीर है तो उसको इज्जत दे रहा है, तो उस्ताद तो बच्चे कहते हैं ना, या उस्तादू, है ना, लेकिन जब प्रिंसिपल बोलेगा तो या शेखू बोलेगा, या शेख, ठीक है, शेखुन होता है, बट जब या लगता है तो या शेख हो जाता है। आगे अल मुदर्रिसु फीही अशरतु तालिबातिन जुदूदिन। ये अशरा नहीं है, दोबारा पढ़ें। ठीक है, अशरत अशरा, अशरा, ठीक है ना, अशरत तीनों पे 10। जबर। जब आप अशरा कहते हैं तो आप यहाँ पे सुकून लगा देते हैं, जी जी। गलत हो जाता है। अशरतु तुल्लाबिन अशरतु तुल्लाबिन जदीदुन, जुदुदिन, सॉरी जुदूदिन। तो चलिए। नए तालिबे 10 थे, उसमें मतलब फसल में जा रहे, ये हा का जो जमीर है फी ही, उसमें आशरा तालिबिन 10 नए तालिबे इल्म है उसमें। ठीक है, आगे पढ़िए। अल मुदीरु मिन ऐन हुम, कहाँ से है वो सब, अकुल्लुहुम उन सब, मिन बलदिन वाहिदिन, एक ही शहर से है। क्या सारे एक ही शहर से हैं? कुल्लुहुम, ऑल ऑफ देम, कुल्लुहुम का मतलब है ऑल ऑफ देम जी। क्या वो सब एक ही शहर से है? आगे क्वेश्चन है। अल मुदर्रिसु ला मतलब नहीं, हुम मिन बिलादिन मुख्तलिफिन, वो सब अलग अलग शहर से है। मुख्तलफतिन, मुख्तलफतिन अलग अलग शहर से है। बिलादिन मिनहुम सलासतु तालिबिन तुल्लाबिन मिनल फसली, मिनल फसल, ठीक है, फिलिपीन, ठीक है ना। तो मिनहुम सलासतु, सलासा किसको बोलते हैं? सलासतु उनमें से 3 तालिबे इल्म जो है फिलीपीन से है। सलासतु तुल्लाबिन जो है ये क्या बन रहा है, कौन सा मरकब बन रहा है? उनमें सलासतु तुल्लाबिन ये मुरक्कब इजाफी बन रहा है, इजाफी बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका कसरा आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ये बैलेंस नहीं है, ठीक है, एग्री नहीं कर एक दूसरे से, तो ये आपका मुरक्कब इजाफी है। तो ये जो गिनती होती है ना 3 से लेके 10 तक, नोट करें, 3 से लेके 10 तक ये गिनती मुरक्कब इजाफी की शक्ल में आती है। वाव मतलब अतफ हो गया। मिनल फिलिपीनी वा अरबातु तुल्लाबिन, तुल्लाबिन मिनल याबानी, ये भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है, ये भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है, अरबातु तुल्लाबिन। तो 4 स्टूडेंट मिनल याबान से है, जापान से। तो ये आपका अरबातु तुल्लाबिन आपका मुब्तदा बन जाएगा और ये खबर बन जाएगी मिनल याबानी। आगे पढ़िए। अतफ हो गया। तालिबानी मिनस्सीनी 2 तालिबे इल्म सीन चाइना से है। और तालिबुन एक तालिब इल्म वाहिदुन मिन मलेशिया से है, एक तालिब इल्म। हाँ, एक स्टूडेंट मलेशिया से है। चले अब 1-2 जुमले पढ़ लें आप, ये तो उन्होंने पहले भी पढ़े थे, 1-2 पढ़ लें आप। अल मुदीरु अफी फसलिका तुल्लाबुन मिन अमेरिका, अफी मतलब क्या आपके फसल में से एक तुल्लाब मिन अमेरिका से है, क्वेश्चन आ रहा है। अब ये है कि क्या आपकी क्लास में कुछ स्टूडेंट तो लाबुन जमा है ना, तो आ स्टूडेंट तो नहीं कहेंगे ना, तो हम जब जमा आता है तो फिर जमा के लिए कुछ का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। क्या कुछ स्टूडेंट में अमेरिका से हैं, कुछ अमेरिका से हैं, ठीक है ना, या हाँ, तो क्या जवाब दे रहे हैं? नाम फीही सबअतु तुल्लाबिन मिन अमेरिका, मतलब 7 जो तुल्लाब तालिबे इल्म जो है अमेरिका से है। 7 तुल्लाबिन, ये भी मुरक्कब इजाफी बन रहा है। 3 से 10 तक की पूरी गिनती जो है
وہ آپ کی کس میں بنتی ہے؟ مرکب اضافی میں. اور پھر آپ اس میں دیکھیں تھوڑا میچ کریں ان دونوں کو, تو یہ مؤنث ہے اور مذکر ہے, یہ مؤنث ہے اور یہ مذکر ہے. طلاب میسکولین, طالب ان سے بنا ہوا ہے طلاب, اور سب اتو گول تا لگی یہ مؤنث ہے, اپوزٹ ہے یہ نمبر. ٹھیک ہے, تو تھوڑا سا جس کو سمجھ آ رہی ہے وہ اس کو نوٹ کر لے. بس آپ ٹھیک ہے یہیں تک پڑھیے, میں نیکسٹ سسٹر کو بلاتی ہوں. فوزیہ ریحانہ آپ آ جائیں. المدیر اہم جدودن, تو کیا وہ سب نئے ہیں؟ پھر آنسر لکھا المدرس لاہم قدامی, مطلب قدا مطلب پرانے بول لیں گے نا. ہاں, تو یہ قدامہ پڑھا جائے گا, میں ہی نہیں پڑھیں گے. قدیم سے قدامی, قدامہ. قدامہ یا سے پہلے زبر آئے تو اس کو کھڑی زبر پڑھتے ہیں, یہ نوٹ کریں بات, اپنی ڈائری میں نوٹ کریں. یا سے پہلے کھڑی زبر آئے تو اس کو, یا سے پہلے زبر آئے پہلے لیٹر پہ تو اس کو کھڑی زبر پڑھا جاتا ہے, الف پڑھا جاتا ہے اس کو. چلیں آپ بس کر دیں سسٹر فوزیہ, آپ آ جائیں جلدی جلدی آئیں. وعلیکم السلام. یہاں سے پڑھنا شروع کریں, بلکہ یہاں سے پڑھ لیں, یہاں سے پڑھ. المدیر ابھی فصل کا طلاب من امریکہ, مدیر کیا آپ کی کلاس میں کچھ طالب علم امریکہ سے ہیں؟ المدرس استاد نعم ہاں, فیہ سبعۃ طلاب من امریکہ, اس میں 7 طالب علم امریکہ سے ہیں. میم ابھی آپ نے سبعۃ طلاب میں کہا تھا یہ مؤنث اور مذکر کا مرکب اضافی میں, یہ تھوڑا سا بتا دیجیے گا. اچھا, ایک تو یہ نا کہ یہ آپ کا مرکب اضافی بن رہا ہے, صحیح ہے, وہ تو آپ کو کلیئر ہے نا, یہ مضاف ہے یہ مضاف الیہ ہے. اچھا, دوسرا آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ یہ اپوزٹ ہوں گے. جب بھی آپ یہ نمبر بنائیں گے نا, تو اگر یہاں پر آپ مؤنث لا رہے ہیں تو یہاں آپ سب آ لائیں گے, اس کا مؤنث مذکر لائیں گے, سب آ لائیں گے. جب یہاں پہ آپ کا طالبات ان ہوگا تو 7 لڑکیاں, 7 فیمیل اسٹوڈنٹ, تو اگر یہاں پہ آپ کا مؤنث ہوگا تو وہاں پر آپ کا مذکر ہوگا. ٹھیک ہے, اب یہاں پہ مذکر ہے تو یہاں پہ مؤنث آ رہا ہے. تو عربی کے اندر گنتی بھی مذکر مؤنث میں آتی ہے, یہ مذکر ہے اور یہ مؤنث ہے. جس طرح آپ کے یہ آتے ہیں نا ناؤنز آپ کے مذکر, طلابن اور طالباتن ہے نا, طالباتن یہ طالباتن کی جمع طالباتن, تو یہ مؤنث ہے تو یہاں پہ مذکر آئے گا. اگر یہاں مذکر آئے گا تو یہاں مؤنث آئے گا. سمجھ آ گئی بات؟ اور یہ ہمیشہ 3 سے 10 تک آپ کے مرکب اضافی کی شکل میں آنے ہیں نمبرز. اور 3 سے 10 میں ہی یہ مذکر مؤنث کا کنٹراسٹ ہوگا. ہاں بس یہی ہوگا, کنٹراسٹ میں آئیں گے. ٹھیک ہے, چلیے آگے پڑھیے. المدیر ہیڈ ماسٹر اہم جددن, کیا وہ نئے ہیں؟ المدرس استاد لا ہم قدامہ, نہیں وہ پرانے ہیں. المدیر یہ کون سا سینٹینس ہے؟ ہم قدامہ, ہم قدامہ فیلیا. جب میں جملہ بولتی ہوں نا کون سا سینٹینس ہے تو فیلیا یا اسمیہ بولنا ہوتا ہے آپ نے. یہ اسمیہ ہے, اسمیہ کیونکہ اسم سے سٹارٹ ہو رہا ہے نا. ضمیر ہے. اور یہ کیا بنے گی؟ ضمیر کیا بنے گی؟ مبتدا. اور قدامہ کیا بنے گا؟ خبر. ہاں, قدامہ کیا ہے؟ قدیم کی جمع ہے. قدیم, پرانے نا, پرانے اسٹوڈنٹ قدامہ. تو چونکہ یہاں پر جمع آیا ہے, پرولر آیا ہے, تو یہاں بھی جمع آئے گا, کیونکہ مبتدا خبر جو ہوتے ہیں وہ 3 چیزوں میں برابر ہوتے ہیں اور ایک میں برابر نہیں ہوتے. وسعت میں برابر نہیں ہے. وسعت میں یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے. باقی اعراب میں دونوں مرفوع ہیں اور جینڈر میں دونوں مذکر ہیں. ہم بھی مذکر ہے, قدامہ بھی مذکر ہے. عدد میں یہ بھی جمع ہے, یہ بھی جمع ہے. ٹھیک ہے, اور آگے جا کے یہ معرفہ ہے اور یہ نکرہ ہے, تو یہ آپ کا جملہ بن جاتا ہے. المدیر جی. ہیڈ ماسٹر کم طالباً فیہ من اروپا, ان میں سے کتنے طالب علم یورپ سے ہیں؟ ان میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے یہاں پہ. کم طالباً, ہاؤ مینی اسٹوڈنٹس آر فرام, فی ان اٹ, ان اٹ آئے گا. اس میں کہیں نا, اس میں سے نہیں کہیں, سے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس میں کتنے اسٹوڈنٹ یورپ سے ہیں؟ یورپ سے ہیں. اچھا, کم کوشچن کے لیے. ٹھیک ہے, استفہام کا ہے یہ, اور یہ ناؤن ہوتا ہے, ناؤن ہوتا ہے اس کو, یہ ناؤن ہے. کم جو ہے یہ ناؤن ہے, حرف نہیں ہے. اور طالباً جو ہے یہ بھی اسم ہے, آپ کو پتہ ہے تمجیز ہے.
اور فی ہی مرکب جاری بن رہا ہے, فی اور آگے ضمیر ہے. من اربا, اربا جو ہے یہ آپ کا مرکب جاری بن رہا ہے. من کے بعد آپ کا یورپ جو ہے وہ اس کے نیچے کسرہ تو لگا ہی نہیں سکتے نا, الف آ رہا ہے آخر میں. جس لفظ کے آخر میں الف آ جائے اس کے نیچے کسرہ نہیں لگا سکتے, تو اربا ہی رہے گا یہ. تو اب آپ کا یہ بن گیا جملہ اسمیہ. آگے پڑھیے. المدرس استاد فیہ خمسۃ طلاب من انگلترا, اس میں 5 طالب علم انگلینڈ سے ہیں. وثمانیات طلاب من المانیہ, اور 8 طالب علم جرمنی سے ہیں. اب دیکھیں آپ کو گنتی سکھا رہے ہیں نا, 5 8 9 کیا 7 کیا. واسطۃ طلاب, اور 6 طالب علم من فرنسا فرانس سے ہیں. وتسعۃ طلاب, اور 9 طالب علم من ہولندا ہالینڈ سے ہیں. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تسعۃ جو ہوتا ہے یہ آپ کا 9 ہوتا ہے. الدرس التاسع پڑھ رہے ہیں نا, ہے نا, تو وہ جو ہے آپ کا تاسع وہ سے تسعۃ, یہ مؤنث ہے کیونکہ یہاں مذکر آ رہا ہے. چلیں آگے. ہیڈ ماسٹر شکرن یا شیخ, او شیخ آپ کا شکریہ. شکرن, شکرن جو ہے نا یہ ہاں منصوب آ رہا ہے. جب منصوب اسم آئے گا تنوین آئے گی اس پہ تو الف لام ایڈ ہوگا, ٹھیک ہے. جب بھی کسی لفظ کے اوپر 2 زبر ڈالیں گے الف ایڈ ہوگا. ایکسیپشن کیا ہے اس رول کا؟ گولتا آئے گی تو 2 زبر آئیں گے تو الف ایڈ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. ویسے میں نے آپ کو ایک بغیر بھی آ سکتی ہے. ہاں اس کے بغیر الف کے بغیر گولتا ہوگی تو اس میں میم کم تو نہیں آ رہا نا, لیکن یہ تمییز کے اصول پہ پورا اتر رہا ہے, تو کم کے بغیر بھی ہاں بالکل. کتابن کتابن اس میں تو کوئی کم نہیں آ رہا نا, ہے نا. اور کچھ بھی کر لیں آپ, طالبن طالبن تو طالبن, تو کچھ بھی نسبی حالت میں لائیں گے تنوین 2. جب نکرہ اسم نسبی حالت میں آئے گا نا تو ظاہر اس پہ زبر تنوین ہوگی تو پھر الف ایڈ ہوگا. معرفہ میں نہیں ہوگا. معرفہ میں آپ کا چونکہ تنوین آتی ہی نہیں, الطالبو ہے نا, اب اس کی نسبی حالت بنائیں, الطالبو کی نسبی حالت بنائیں, الطالبہ با ہوگا. اب اس میں آپ کے تنوین آ ہی نہیں رہی نا, تو اب نسبی حالت میں آپ کی تنوین نہیں آ رہی تو آپ الف بھی ایڈ نہیں کریں گے. جب نکرہ ہوگا الف لام نہیں ہوگا تو طالب بن ہوگا نا, تو پھر آپ الف بھی ایڈ کریں گے. الف لام ہٹا دیں تو تنوین آ جائے گی نا, تنوین آ جائے گی نا, طالبن ہو جائے گا اور طالب بن ہو جائے گا. جب 2 زبر آئیں گے نسبی حالت میں تو پھر الف ایڈ, بس یہ کرنا ہے. الف لام آئے گا تو پھر 2 زبر آ ہی نہیں سکتے, تو پھر آپ کو الف بھی ایڈ نہیں کرنا, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں کچھ, ان کو ریپیٹ کریں گے اور یہ ہو جائیں گے. اچھا آپ خود غور کیا کریں, جہاں پہ الف لام آ رہا ہے وہاں پہ آگے ایک زبر آ رہی ہے تو پھر ایک زبر کی وجہ سے تو پھر الف نہیں آتا آگے, 2 زبر آئیں گے تو الف آئے گا. اچھا جی, اب یہاں پہ آپ کو گنتی سکھائی جا رہی ہے, ریڈ اینڈ رائٹ. چلیے آ جائیں, کوشچن آنسر نہیں آ جا آپ کے. تو فرزانہ خان, فرزانہ آپ آئیں گی, بہت دنوں بعد آپ کلاس میں نظر آئیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ, کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ. اچھا تو ٹائم سوٹ کر رہے ہیں آپ کو کہ نہیں؟ جی ہاں اس وقت ٹھیک ہے. آپ سڈنی میں نا؟ اس وقت میلبرن میں. ہاں ٹھیک ہے, سڈنی میں. جی اس وقت 9:15 ہو رہا ہے. اچھا ٹھیک ہے نا, آپ اس وقت مطلب فارغ ہوتا ہے بلکہ, ہے نا, بالکل, اور سکون سے پڑھ سکتا ہے ایک جگہ بیٹھ کے. ہاں تو آپ یہ والا ٹائم آپ, ہاں تو آپ آیا کریں, ضرور آئیں کلاس میں, کیونکہ ہم یہ بک 2 اچھی طرح کریں گے تو بک 3 بھی اچھی طرح پڑھیں گے انشاءاللہ. بس وہ تھوڑا سا گھر کی شفٹنگ میں تھوڑا سا, میں آپ کو مائک ضرور دوں گی کیونکہ آپ صحیح ہے. تو چلیں آپ پڑھیے. جی ضرور انشاءاللہ. اوکے, ثلاثۃ, یہاں سے پڑھیں. اقرا و وقت, ریڈ اینڈ رائٹ. اقرا کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا,
पढ़ना और लिखना, ठीक है, पढ़ो और लिखो, इसमें कमांड है, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है आपको, इकरा वक्तुब, लिखिए एंड पढ़िए। चलिए जी। सलासतु तुल्लाबिन, सलासतु तुल्लाबिन, इसका क्या हुआ? तीन स्टूडेंट। अच्छा, तीन, हाँ, 3 स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स कहेंगे ना, स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट्स। हाँ, तो ये 3 से 10 तक आपको गिनती सिखाई रहे, 3 से 10, 3 to 10। जी जी जी। तो ये मुरक्कबे इजाफी बन के आ रहे हैं, ठीक है, मुरक्कबे इजाफी बन के आ रहे हैं और ऑपोजिट आ रहे हैं। ये मुजक्कर होगा तो ये आपको गोल ता के साथ लिखना पड़ेगा, मुजक्कर, और ये मुअन्नस। चलें आगे, नंबर 4। अच्छा, अरबत्तु तुल्लाबिन, 4 तालिब इल्म, खमसतु तुल्लाबिन, 5 तालिब इल्म, सित्ततु तुल्लाबिन, 6 तालिब इल्म। ये अरबी में भी लिखा हुआ, ये भी पढ़ना आता है जी। ये उर्दू से मिलती जुलती होती है, ठीक है ना? जी जी जी, बिल्कुल, जी जी हाँ, जी, चलें आगे नहीं देखें। समझ में आ रहा है जी, कुरान शरीफ को देख के ना उससे समझ में आ जाता है। सब अतु तुल्लाबिन, 7 तालिब इल्म, समानियतु तुल्लाबिन, 8 तालिब इल्म, तिसअतु तुल्लाबिन, 9 तालिब इल्म, अशरतु तुल्लाबिन, 10 तालिब इल्म। ठीक है। इसकी कोई खास वजह के, मतलब जैसे कोई रीजन तो नहीं है ना कि उन्होंने ये मुअन्नस में है और उसके आगे उन्होंने ये रूल मिसाल है, जो ली है? ये रूल है, ये मैंने अच्छा, रूल रूल बनाए, है। ये रूल्स हैं और इन्होंने रूल्स, हर चीज के रूल्स बना के हमें दे दिए ताकि हमें सीखने में आसानी हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मुअन्नस आ रहा है, आपका अदद मुअन्नस आ रहा है, अगर इसको देख के बनाते हैं, इसको देख के अदद, ये होता है मादूद, इसको कहते हैं मादूद। मादूद होता है जिसको गिना जाता है ना, मादूद वो होता है जिसको गिना जाता है, काउंट किया जाता है, तुल्लाब को काउंट किया जा रहा है। और ये क्या है? ये अदद है जी, जिसका, जिस तरह आपका होता है ना मुदाफ और मुदाफिल है ना, मौसूफ और सिफ, जी जी, इसी तरह आपका अदद और मादूद होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं फिर? मुरक्कबे अददी कहते हैं, मुरक्कबे अददी। इसको जैसे हम मुरक्कब इजाफी कहते हैं, इसको मुरक्कब अददी कह देते हैं। अब मुरक्कब अददी का रूल क्या है? मुजाफ और मुजाफिल का अलग रूल है, तो तौसीफी का अलग है, जारी का अलग है, इशारी का अलग है। इसी तरह मुरक्कब अददी के इंग्रेडिएंट्स जो होंगे ना, वो होंगे, अगर यहाँ पर मुजक्कर है, एक तो ये मुरक्कब इजाफी की शक्ल में होगा। पहली बात यह है कि ये मुरक्कब इजाफी की शक्ल में होगा, यानी इसके ऊपर अलिफ लाम और तनवीन नहीं आएगी और इसके नीचे ज़ेर आएगा ऑलवेज, ठीक है। तो ये मुरक्कब इजाफी की शक्ल में होगा। दूसरी बात ये होगी कि ये मुजक्कर होगा तो ये मुअन्नस होगा। मादूद आपका मुजक्कर है तो यहाँ पे मुअन्नस होगा अदद। ये नंबर दूसरा रूल है। पहला रूल क्या है? मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। और दूसरा रूल उसकी शक्ल में आएगा, मुरक्कब इजाफी की शक्ल में, तो आपको मुरक्कब इजाफी के रूल्स लगाने होंगे इसके ऊपर। इसके ऊपर अलिफ लाम, ये तनवीनी कसरा है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये वाला मादूद जो है अगर मुजक्कर है तो ये क्या होगा? मुअन्नस होगा। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल ये है, इसमें एक और रूल भी है और वो ये है कि बताने लगी थी फिर भूल गया, दिमाग से निकल गया। तो बहरहाल ये 2 रूल तो इसमें हैं। दूसरा रूल ये बताया कि ये मुजक्कर और ये मुअन्नस है। तीसरा रूल ये है कि ये जमा है। तीसरा क्या है? ऑलवेज ये जमा है, जमा जमा जमा। और ये वाहिद है, ये वाहिद है, ये जमा आएगा यहाँ पे। अगर फीमेल स्टूड लगानी है तब भी जमा में ही लगाएंगे। तालिबातुन नहीं लगा सकते, तालिबातिन नहीं लगा सकते, तालिबातिन, अकलामिन। तो ये आपका जो आएगा ना मादूद, ये हमेशा जमा में आएगा। इसको आपने जमा और मजरूर, मजरूर क्यों? क्योंकि मुदाफिल है तो इसलिए वो मजरूर है, ठीक है। जमा तो इसलिए भी आएगा कि नंबर भी इतना, यानी 1 से तो बड़ा है। हाँ, 1 से बड़ा है ना, 2+ है ना, तो 2 हो तो आपका मुसन्ना होता है, 2+ से और जमा हो 2+ से जमा हो जाता है। सही बात है। तो क्योंकि नंबर ज्यादा हो गए हैं, 3 हो गए हैं, तो इसलिए यहाँ पे जमा लाना जरूरी हो गया। स्टूडेंट्स 6 स्टूडेंट्स 5, तो 3 से शुरू हो जाता है, इसलिए 3 से स्टार्ट किया है। 3 से जमा स्टार्ट होता है, इसलिए यहाँ पे मादूद जमा आएगा तो नंबर जो है वो
آپ کا پھر مونس میں آئے گا اگر یہ مذکر ہے. اگر یہاں مونس ہے تو یہ مذکر میں آ جائے گا, اپوزٹ ہوں. تو یہ کچھ باتیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ ریپیٹ ہوتی رہیں گی اور آ جائیں گی. پھر آپ یہاں بتائیے مرکب اضافی بن رہا ہے تو پھر یہ جو مبتدا ثلاثت مبتدا بن رہا ہے, طلاب خبر ہے نا کہ طلاب مبتدا ہے؟ یہ مبتدا خبر تو ہے ہی نہیں نا. ہاں یہ مبتدا خبر نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ تو مرکب ناقص ہے نا, یہ مرکب تام نہیں ہے. جو جملہ ہوتا ہے نا وہ مرکب تام ہوتا ہے, جملہ اسمیہ بھی جملہ فعلیہ بھی, وہ کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے. یہ مرکب اضافی بن رہا ہے, آپ نے کہا نا ثلاثت الطلاب. ہاں مرکب اضافی بن رہا ہے. تو اس میں پہلا والا مضاف ہے اور دوسرا والا کیا ہے, مضاف الیہ. ہاں اس میں ال نہیں لگے گا. اوکے میں پھر کنفیوز ہوئی. نہیں ہاں یہ نکرہ آ رہا ہے نا, تنوین کے ساتھ آ رہا ہے, نکرہ آ رہا ہے. ویسے تو مضاف الیہ پہ آپ الف لام بھی لگا سکتے ہیں نا, جیسے رسول اللہ ہے نا, کتاب اللہ, تو الف لام آ سکتا ہے مضاف الیہ پہ, لیکن یہاں پہ آپ نے نہیں لگانا, یہاں پہ نہیں لگانا, اس کو نکرہ ہی لانا ہے. اس کو نکرہ لانا ہے, جمع لانا ہے اور مجرور لانا ہے. نکرہ جمع اور مجرور, کیونکہ یہ مجرور اس لیے کہ یہ مضاف الیہ ہے, جمع اس لیے کہ 3 سے زیادہ ہے, 2 سے زیادہ ہیں 3 ہے, اور نکرہ اس لیے کہ نکرہ لانا ہے, اس کو رول ہے. اس کو معرفہ نہیں لا, جو نمبر بتایا جا رہا ہے تو وہ معرفہ ہوگا, ثلاثت اربعۃ. نہیں وہ بھی نکرہ ہے. نکرہ اس لیے کہ یہ نکرہ ہے, اگر یہ معرفہ ہوتا ہے نا تو پھر وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے آٹومیٹک. اچھا تو یہ چونکہ نکرہ ہے تو اس لیے یہ بھی نکرہ ہی رہے گا. ٹھیک ہے, دونوں نکرہ رہے. اگر یہ معرفہ ہوتا تو اس کو ہم معرفہ کہہ سکتے تھے. تو یہ آپ کو گنتی ہے 3 سے 10 تک, ثلاثت, اربعۃ, خمسۃ, ستۃ. اچھا اس کا مذکر بھی ہوتا ہے. اس کا مذکر کیا ہوتا ہے وہ ہم پڑھیں گے آگے, میں ابھی نہیں بتا رہی. تو یہ مونس ہے سارے. تو پھر جب یہاں پہ مونس آئے گا تو وہ مذکر آ جائیں گے یہاں پہ سارے. وہ اگلے لیسن میں یا تو بک 2 اگلی میں بک میں پڑھیں گے یا اگلے لیسن میں پڑھیں گے. ابھی نیکسٹ سسٹر آ جائیں, ٹائم ضائع نہیں کریں. ایمان آپ آئیں گی, قدسیہ بھی ہیں, جو نہیں آیا آج تک مائک پہ پلیز وہ آ جائے. ریڈنگ ہی تو کرنی ہے. سارا بھی ہیں, سارا علی بھی. میں ریڈنگ نہیں کر رہی میم, میری بیٹی آج بہت شور کر رہی ہے, کلاس ڈسٹرب ہوگی بیچ میں. کوئی بات نہیں ہے. آپ کا کیا نام ہے جو ریڈنگ نہیں کر رہی؟ ایمان. اچھا میری بیٹی آج تنگ کر رہی ہے تو وہ پھر نا کلاس ڈسٹرب ہوگی بیچ میں. کوئی بات نہیں, یہ تو اچھی بات ہے. چلیں قدسیہ پڑھ لیں آپ. ٹھیک ہے, قدسیہ میں پڑھ رہی ہوں. یہ پڑھیے قدسیہ. اقرا واکتب, read and write. ان پہلا والا ہے ان دی خمسۃ کتب وثلاثۃ اقلام. میرے پاس 5 کتابیں ہیں اور 3 قلمیں ہیں, پین ہیں. نمبر 2 خالد لہ ستۃ ابناء. خالد اس کے 6 بیٹے ہیں. کم اخالک یا آمنۃ, اے آمنہ اخن, کتنے آپ کے آمنہ بھائی ہیں. لی اربعۃ اخوۃ, آمنہ کہتی میرے 4 بھائی ہیں. فی الاسبوع سبعۃ ایام, ایک ہفتے میں 7 دن ہوتے ہیں. کم ریالن عندکل آنا یا عمار, اے عمار آپ کے پاس کتنے ریال ہیں. ان دل آنا ثمانیۃ ریالات, میرے پاس اب 8 ریال ہیں. فی حاضل ہے تسعۃ بیوت جدیدۃ, اس شہر میں یا اس شہر میں 9 گھر ہیں, نئے گھر ہیں. اس شہر میں 9 نئے گھر ہیں, یا اس شہر ہی کہیں گے, شہری ڈسٹرکٹ بھی کہہ سکتے ہیں, شہری کہہ لیں, سٹی نا, شہر میں 9 نئے گھر ہیں. اچھا حاضل حجی کون سا مرکب بن رہا ہے؟ حاضل حجی یہ بن رہا ہے مرکب اشاری. اشارہ آ گیا نا, اشارہ ہے. حاضا الحی شہر, یہ شہر مرکب اشاری. مرکب اشاری صحیح ہے نا. مبتدا خبر تو نہیں بن رہے نا.
فی حاضر نہیں, مبتدا خبر میں الف لام نہیں آتا, ٹھیک ہے. اس پہ الف لام نہیں ہے. اگر یہ کہتے ہیں نا ہاذا حیٌ, ٹھیک ہے, تو حیٌ کہتے تو پھر آپ کا مبتدا خبر بنتا ہے, اس پہ الف لام آ رہا ہے اس لیے یہ مرکب اشاری ہے. یہ سٹی, ان دس سٹی تسعۃ بیوت جدیدۃ, 9 نئے گھر ہیں. 9 نئے گھر ہیں. آگے پڑھیے, آگے کہاں گیا, یہ لہذا سیارتی, لہٰذا اس سیارت اربعۃ ابواب, اس گاڑی کے 4 دروازے ہیں. کم ثمن حاضل کتابی, اس کتاب کی کتنی قیمت ہے؟ ثمنہ 7 ریالات و نصف, اس کتاب کی اس کی 7.5 ریال اور آدھا, 7.5 کہیں گے اس کو. ہاں نصف 7.5 ریال ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, ابھی آپ کو تھوڑی کنفیوژن نہیں ہو رہی, کسی کا کوشچن نہیں آ رہا کہ یہ دونوں مؤنث کیوں آ رہے ہیں؟ میں نے تو کہا ایک مذکر ہونا چاہیے, ایک مؤنث ہونا چاہیے نا. تو آپ کو تھوڑا سا وہ نہیں ہو رہا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بھی مؤنث ہے, جمع ہی, اس کی جمع ہی یہی ہے. ہاں, کس کی جمع ہے یہ لفظ؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں, یہ لفظ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ ریالن مذکر ہے. الف تا لگ جائے, ہاں الف تا لگ جائے تو وہ کون سا ہوتا ہے؟ مسلمات, یہ سب کیا ہوتے ہیں؟ یہ تو مذکر مؤنث ہوتے ہیں, مؤنث ہوتے ہیں نا الف تا والے, مسلمتن مسلماتن, ہے نا. لیکن یہ مؤنث نہیں ہے, یہ مؤنث نہیں ہے, ریال کی جمع ہے یہ نا. اچھا ایک منٹ صبر کیجیے گا باقی لوگ تھوڑا سا. تو یہ جو ہے نا یہ مذکر ہے ورڈ, یہ مذکر کیوں ہے؟ اس میں تو الف تا آ رہی ہے, تو کیوں مذکر ہے یہ؟ اس کا ریزن کوئی بتائے گا یہ مذکر کیوں ہے؟ ابھی جو سسٹر بول رہی تھی کچھ, ہاں جی, یہ اس کی ریزن تو جیسے سوالات ہم کہتے ہیں تو نہیں, ہاں یہ بہت اچھی مثال دی آپ نے. سوال کی جمع کیا ہوتی ہے؟ سوالات, ٹھیک ہے نا. اور ریال کی جمع کیا ہوتی ہے؟ ریالات. تو اب آپ دیکھیں سوالات آپ کو مؤنث لگ رہا ہے یا مذکر لگ رہا ہے؟ دیکھنے میں تو شکل میں مؤنث لگ رہا ہوتا ہے, لیکن ہے مذکر. اب یہ مذکر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کا واحد مذکر ہے. ریال بھی مذکر ہوتا ہے, ریالتن تو نہیں ہوتا نا, گولتا کے ساتھ تو نہیں ہوتا نا. تو ریالن ریالاتن, صحیح ہے. تو یہاں بھی ریالن کی جمع ریالاتن, تو یہ مذکر ہے. اگر واحد آپ کا مذکر ہے نا تو آپ کا جمع بھی مذکر ہوگا. جیسے سوال مذکر ہے مؤنث نہیں ہے, تو آپ کا جمع سوالات مذکر آ رہا ہے. اس طرح ریال, سمجھ آئیے بات؟ تو اس میں بالکل امارات بھی ہے, عمارت کی جمع ہے نا عمارت. اچھا بہرحال آپ کو سمجھ آ گئی. اگر واحد آپ کا مذکر آ رہا ہے بغیر گول تا کے آ رہا ہے تو وہ مذکر ہی ہوگا نا. تو پھر آپ کا کیا جمع بھی مذکر ہے, چاہے الف تا کے ساتھ آ جائے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس کو نوٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے. اگر واحد کسی لفظ کا, بے شک اس کے پر الف تا آ رہی ہے, لیکن اس کا اگر واحد آپ کا مذکر آ رہا ہے تو وہ لفظ بھی مذکر ہوگا. اب مسلماتن جو ہے وہ کیوں آپ کا مؤنث ہوتا ہے؟ کیونکہ اس کا واحد مسلمن نہیں ہے, اس کا واحد کیا ہے؟ مسلمتن ہے. اگر واحد مؤنث ہوگا تو آگے جمع بھی مؤنث ہوگی, ٹھیک ہے. مسلمون کا مسلمون, مسلمون اور مسلماتن کا مسلمات. تو اس لیے ہم مسلمات کو مصنف کہتے ہیں کہ اس کا واحد مؤنث ہے. لیکن یہاں پر اس کو ہم مذکر اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اس کا واحد مذکر ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ کا مرفوعاتن ایک لفظ ہوتا ہے, منصوباتن ہوتا ہے نا, ایسے ہوتے ہیں نا مرفوعاتن. اب یہ لگتا ہے کہ یہ آپ کا مؤنث ہے, بٹ یہ مؤنث نہیں ہے, کیونکہ یہ مرفوع سے بنا ہوا ہے, مرفوع سے بنا ہوا ہے. مرفوع سے مرفوعاتن, منصوب سے منصوباتن, تو منصوب مذکر ہے تو یہ بھی مذکر ہے. اسی طرح مجرور سے کیا ہوتا ہے؟ مجروراتن. تو اگر مجرور مذکر ہے تو وہ آپ کا مذکر ہی ہے, ٹھیک ہے. تو واحد پہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا واحد کیسا آ رہا ہے. ابھی یہاں پہ دیکھیں اخوتن جو آپ کا لفظ ہے, کیا یہ مذکر یا مؤنث ہے؟ کون بتائے گا؟ کون سا والا ورڈ؟
ये इख्वतिन यहाँ पे आ रहा है, मुअन्नस है, तो ये भी मुअन्नस, ये भी मुअन्नस कैसे हो सकता है? वो मुज़क्कर है, इख्वतुन भाई की हाँ, भाई है ना, उसका वाहिद क्या है उसका? उसका भाई अखुन है। अखुन मुज़क्कर है, तो ये भी मुज़क्कर होगा ना फिर। यही तो मैं बता रही हूँ कि अगर वाहिद बना के देखें। हाँ, अगर वाहिद मुज़क्कर है तो जमा भी मुज़क्कर होगी, अगर वाहिद मुअन्नस है तो फिर जमा भी मुअन्नस होगी, तो ये मुअन्नस नहीं है। ये कैसे पता चलेगा कि हमें इसका जो ड्यूल बनाना है उसमें गोलता ऐड करना? यहाँ पर ये मतलब दूसरे टाइप का ता भी तो आ सकता था। पहली बात तो ये है कि जो ये वो नहीं है, डुअल फॉर्म नहीं है, ये जमा है, और इसका वाहिद क्या है, वो अखुन है। तो अगर वाहिद अखुन है, मुज़क्कर है, तो ये भी मुज़क्कर है, ठीक है। अगर वाहिद आपका मुअन्नस है तो फिर ये लफ्ज भी मुअन्नस होगा। अगर भूल जाए तो मैम सूरह यूसुफ याद कर लें, फिर याद आ जाता है। हाँ, उसमें भी आता है, बहुत से लफ्ज आते हैं। तो आप इसको ये अखुन से बना हुआ, तो अखुन भाई को कहते हैं ना, मुज़क्कर है तो ये भी मुज़क्कर है, उसकी जमा है ये। अभी उख्तुन की जमा क्या होगी? उख्तुन मुअन्नस है तो उसकी जमा क्या होगी? वो अखवातुन, वो अलिफ ता के साथ आ रही है, मुअन्नस है, इसको आप मुज़क्कर नहीं कह सकते क्योंकि ये उख्तुन इसका वाहिद मुअन्नस है। तो आपने वाहिद पे जाके देखना है, तो कोई लफ्ज अलिफ ता के साथ आ रहा है या गोल ता के साथ आ रहा है और जमा आ रहा है, तो मुज़क्कर है या मुअन्नस है। तो यहाँ पर आप देखें, ये भी मुज़क्कर है, रियालातिन भी मुज़क्कर है, और ये वाला रियालातिन भी मुज़क्कर है, ठीक है। तो अलिफ ता, बोलिए। ये हय्युन का मतलब भी शहर होता है और बलद का मतलब भी शहर ही होता है। हाँ, बलद कंट्री को भी कह सकते हैं, ठीक है। अब बिलाद उसकी जमा होती है, और बलद पे भी बोला जाता है, सिटी पे भी बोला जाता है बलद। तो ये सेंटेंस नंबर 6 में हाजल हई, तो मतलब यहाँ सिटी से मतलब है इसका। दिस सिटी, दिस डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट भी कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट थोड़ा बड़ा होता है सिटी से, है ना। मतलब अरबी में भी क्या सिनोनिम्स होते हैं क्या उस्ताद, कि मतलब शहर को कुछ और भी कहा जा सकता है, लाइक बलद है तो उसको हई भी कहा जा सकता है? हाँ, हो जाते हैं, कभी कभी हो जाते हैं, लेकिन हर चीज के लिए अलग अलग वर्ड होता है। बलद आपका कंट्री के लिए होता है, बिलाद कंट्री के लिए होता है बलद, और हज जो होता है ये सिटी के लिए होता है। इलाका भी कर सकते हैं, जैसे इस इलाके में आप सिटी कह लेना, क्यों इधर उधर जा रहे हैं, आप सिटी कह लें, बस खत्म करें बात, और बिलाद कंट्री कह लें, ठीक है। तो इस तरह से होता है। अच्छा, उसके बाद लिहाजी है सयारती अरबा अतु अब्वाबिन। अब हम ये देखें, यहाँ मुज़क्कर आ रहा है तो ये भी मुअन्नस आ रहा है। और कम समनु, ये सब हमने पढ़ लिया ना, सारा हो गया ना, आई थिंक। अच्छा, थोड़ा ये कम समनु यहाँ से नहीं पढ़ा दे। अच्छा, पढ़े, यहाँ तक 5 से पढ़ना है। कम समनु हाजल किताबी 6 से। अच्छा, 6 से पढ़ना, चले पढ़े। ये 6 हो गया था, अगला वाला पढ़ना। लिहाजा सियारती अरबातु अब्वाबिन, इस गाड़ी के 4 दरवाजे हैं। कम समनु हाजल किताबी, इस किताब की कितनी कीमत है? समानुहु सबअतु रियालाती व निस्फ। हाँ, ये हो गया था, इसके 7.5 हमने कहा था, उसके 7.5। नंबर 9 पढ़ते हैं, कोई और आके पढ़ ले। मैम, ये जो अभी सेंटेंस पढ़ा है हमने, कम समनु, इसमें समनु तमयीज है, तो इस पे पेश आई हुई है, जबर नहीं है, ये थोड़ा सा बता दीजिए। कहाँ पर आ रहा है? नंबर 8 नंबर वाला 8। हाँ, तो ये कम कीमत के लिए ना, कितनी कीमत है, तो ये आपका तमयीज तो नहीं है ना, ये तमयीज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपके उसके बाद जो आ रहा है वो तमयीज ही हो। कम के बाद कितनी कीमत, हाउ मच प्राइस, ठीक है ना, हाउ मच, ये हाउ मच के मानी में यहाँ पे आ रहा है। जब तमयीज होगा तो मैंने बताया कि वो आपका मंसूब होगा, वाहिद होगा और नकिरा होगा। ये आपका नहीं है, ये आपका मरफू है, मंसूब नहीं है, तो ये आपका तमयीज नहीं है। समानुन से समानु बना हुआ है। कितनी मैम, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो हो सकता है ये तमयीज ही हो, लेकिन ये उसमें से एक्सेप्शन हो, जैसे वो उसकी एक्सेप्शन है गोल दाग। जब एक्सेप्शन आएगी ना तो फिर मैं बता दूंगी। अभी आप देखें इसको क्या बन रहा है जुमले में।
पहली बात तो ये होती है कि हम ये क्वेश्चन वाले जुमले एनालाइज नहीं करते, उसका एनालिसिस नहीं करते। दूसरी बात ये है कि अगर हम करें भी तो आपका क्या आएगा, यहाँ पर हाजल किताबु मुरक्कब शारी बन के मुब्तदा आएगा, और ये वाला समानुन जो है ये आपका, ये आपकी खबर आ जाएगी, समानुन से समानुन बन गए। असल में ये समानुन क्यों आया, समानुन क्यों नहीं आया? समनु हाजल किताबी, ये पूरा मिल के आपका क्या बन रहा है, मुब्तदा बन रहा है। ठीक है, ये पूरा मिल के आपका मुब्तदा और ये खबर बन रही है, क्वेश्चन वाला जो है। ठीक है, तो ये आपका समनु हाजल किताबी, ये एक ही, ये मुरक्कब शारी है। समनु मुदाफ है, देखें जब तनवीन नहीं आती ना किसी लफ्ज के ऊपर तो वो मुदाफ बन रहा होता है, मुदाफ बन रहा होता है, और उसके बाद वाला क्या बन रहा होता है, मुदाफ इलैह बन रहा होता है। सही है, ये मुदाफ इलैह बन रहा है। ये मजरूर है, ये मजरूर है, ये मुदाफ इलैह, तभी तो यहाँ पे जेर आ रही है ना। यहाँ पे जेर क्यों आ रही है, क्योंकि ये मजरूर है, और ये क्यों मजरूर है, ये मुदाफ इलैह है। तो ये दोनों आपस में बैलेंस होते हैं ना, ये मजरूर होगा तो ये भी मजरूर होगा, ये मरफू होगा तो ये भी मरफू होगा, ये मंसूब होगा तो ये भी मंसूब होगा। ठीक है, तो ये मजरूर है तभी यहाँ पे कसरा आ रहा है, क्योंकि ये बदल होता है ना, तो बदल में सेम सेम चीज आती है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये मरफू और ये आपका मजरूर हो। ये आपका मजरूर हुआ है, और ये क्यों मजरूर हुआ है, हाजा क्यों मजरूर हुआ है, क्योंकि ये मुदाफ इलैह बन रहा है समानू का। तो ये पूरा आपका ये समानू से लेके हाजल किताबी तक पूरा ये आपका, इसको मुब्तदा बना लें या खबर बनाएं तो ज्यादा सही है, और इसको मुब्तदा बना लें। ठीक है, और ये पूरी खबर बना लें, क्योंकि समानुन था, ये खबर जो होती है वो नकिरा होती है, तो ये समानु हाजल किताब। तो ये जो किताब है इसकी कीमत कितनी है, कितनी है। तो कम को खबर भी बना सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं, कम को खबर भी बना सकते हैं और इसको भी मुब्तदा बना सकते हैं। क्वेश्चन वाले को मैंने बताया हुआ है कि इसको आप खबर भी बना सकते हैं, तो आप इसको खबर बनाएंगे तो आगे वाले को मुब्तदा बना लेंगे, इसको खबर और पूरा इसको मुब्तदा बना लेंगे। जब उर्दू में तर्जुमा करते हैं ना, तो जो लफ्ज है के करीब होता है ना वो खबर बनता है। करें तर्जुमा उर्दू में, ये किताब या इस किताब की कीमत कितनी है, तो कितनी यहाँ पे आ रहा है ना, तो ये कितनी खबर बनेगा। ठीक है, जो है के पास आता है वो खबर होता है, ये उसकी अलामत है। तो कितनी यहाँ आ रहा है तो ये खबर है, इसको खबर बना लें और ये पूरा मुब्तदा बना लें। समनु हाजल किताब, इसको मुब्तदा बना लें। ठीक है, अब समनु हु, उसकी कीमत, यानी किसकी कीमत, किताब, हु की ज़मीर कहाँ जा रही है, किताब की तरफ। समनु हु, उसकी कीमत सब अतु रियालातिन व निस्फु, 7.5 रियाल है। और ये आपने ज़हन में रखना है कि ये मुज़क्कर है, क्योंकि इसका वाहिद जो है वो मुअन्नस नहीं है, रियाल मुज़क्कर होता है। इसी तरह डॉलर मुज़क्कर होता है, लेकिन उसकी जो जमा बनती है दुलारातुन बनती है। ठीक है, तो इस तरह से आपको वाहिद देखना पड़ता है, वाहिद मुज़क्कर है या मुअन्नस। ठीक है, अब इतना ही काफी है, थोड़ा सा इसको रीड कर लें फिर मैं इंशाल्लाह खत्म करती हूँ। मैं पढ़ूं अभी? हाँ आ जाए, जल्दी से आ जाए जी। फी हादल फसली, एक मिनट, फी हादल फसली अशरतु तुल्लाबिन कुदामा व अर्बअतु तुल्लाबिन जुदुदिन। इस क्लास में 10 तालिबे इल्म पुराने हैं और 4 तालिबे इल्म नए हैं। जुदुदुन को याद रखें, जदीदुन की जमा है। ठीक है, तो जब यहाँ पे आपकी जमा आई तो उसकी सिफ्त भी जमा आएगी ना। जी जी, ये मौसूफ है, ये सिफ्त है उसकी, ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, लेकिन ये वाला मुरक्कब इजाफी बन रहा है। ठीक है, और ये इसके साथ मिलके तो ये मुरक्कब तौसीफी बन रहा है, तो उसका ख्याल रखना है। तुला बिन कुदामा, ये भी मुरक्कब तौसीफी बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद अशरतु तुलाबिन मुरक्कब इजाफी बन रहा है। 2 को लेते हैं ना मुरक्कब बनाने के लिए, तो ये मुदाफ है, ये मुदाफ इलैह पे मजरूर है। हाज़ल फसली कौन सा मुरक्कब है,
मुरक्कब इजाफी। हाय हाय हाजल अच्छा, फसली जुमला इस्मिया। इशारी है, इशारी। इशारी। अच्छा, अब मुरक्कब मुरक्कब इशारी। इशारी है, तो मुझे ये बताएं कि मुरक्कब इशारी जो होता है ना, उसमें दोनों बैलेंस्ड होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जेर क्यों आ रहा है, यहाँ पे कसरा क्यों आ रहा है? पेश फी की वजह से मैम, फी की वजह से। हाँ, अच्छा, फी की वजह से ये मजरूर हुआ है ना, उसका जो हर्फ जर वाला होता है उसका नेक्स्ट वाला मजरूर होता है, तो ये वाला क्यों मजरूर हो गया, ये वाला क्यों मजरूर हो गया? ये उसका बदल होने की वजह से मजरूर हुआ है। प्लीज थोड़ा सा चुप हो जाए बेटा। तो यहाँ पर ये फी की वजह से मजरूर हो गया, जब ये मजरूर हो जाता है तो फिर ये भी मजरूर हो जाता है, क्योंकि ये मुरक्कब तौसीफी की तरह चारों हालतों में बराबर होता है, तो ये मजरूर होगा तो ये भी मजरूर हो जाएगा। अगर फी नहीं आएगा तो ये हाजल फसलू होगा, जालिकल किताबू होता है, पेश आती है, जालिका मरफू होता है तो किताबू भी मरफू होता है, तो फिर जब फी आया तो ये मजरूर हुआ तो ये भी मजरूर हो गया। अगर यहाँ पे आप कोई ऐसा ला दें जिसकी वजह से ये मंसूब हो जाए तो यहाँ पे भी जबर आ जाएगी। फर्ज करें मैं इन्ना लगा देती हूँ, तो इन्ना का क्या काम होता है, इन्ना मंसूब करता है, तो ये हाजा मंसूब हो जाएगा तो अल-फसला हो जाएगा, इन्ना हाज अल-फसला हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझें, ठीक है? तो यहाँ पर सोचे ना कि ये कसरा क्यों आ रहा है, तो कसरा क्यों आया, क्योंकि फी की वजह से। फी का असर यहाँ नहीं आएगा, फी का असर उसके नेक्स्ट पे आएगा, वो लेकिन हाजा तो हाजा ही रहता है, वो मबनी है, वहां पे तो आपको नजर ही नहीं आ रहा, तो हाजा का इराब आपको कहाँ से शो होगा, यहाँ से शो होगा। अगर ये आपको पता चलेगा कि ये मजरूर है तो हाजा भी मजरूर हो गया, और वो क्यों मजरूर हुआ है, वो इसकी वजह से हुआ है। ठीक है, चलिए आगे। अशरतु तुल्लाब मुरक्कब इजाफी है, तुल्लाब कुदामिन आपका मुरक्कब तौसीफी है। अब यहाँ पे देखें आपको दो जेर नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कुदामा का हम आखिर में अलिफ आ रहा है तो हम चेंज कर ही नहीं सकते, तो जब चेंज नहीं कर सकते तो जो इसको एराब मिल रहा है मौसूफ को, वो ही उसको मिलेगा, लेकिन लिख नहीं सकते, हम फिजिकली उसके ऊपर डाल नहीं सकते, वो भी मजरूर ही है क्योंकि वो सिफ्त है, और सिफ्त जो होती है मौसूफ को फॉलो कर रही होती है, तो यहाँ पे ये मजरूर है तो ये भी मजरूर है, लेकिन लिख नहीं सकते। ठीक है, चलिए तो आगे चलते हैं, जल्दी से पढ़ें। कम कमीसन, ये कम कमीसन इंदका या इब्राहिमो, इब्राहिम आपके पास कितनी कमीज है, शर्ट है। इंदी तमानियतु कमसानी, मेरे पास 8 शर्ट है। कुमसानी मुजक्कर है, कमीसुन मुजक्कर है ना, तो इसलिए कुमसानी भी क्या है, मुजक्कर है, कमीसुन से बना हुआ है ये। ठीक है, और इंदी जो है ये आपका क्या बनेगा, ये आपका मुरक्कब जारी की तरह है ना, ज़र्फ मुदाफिल है, तो ये भी शुरू में आए तो इसका भी नसीब में खबर, इसलिए भी खबर बननी है, और ये मुब्तदा बन जाएगा, ये पूरा कंप्लीट जुमला है। और यहाँ कम जो है ये आपका क्वेश्चन के लिए, कमीसन जो है ये तमजीज है। अब ये तमजीज है, वहां पे तमजीज नहीं बन रहा था ऊपर, वहां पर समानु वाले सेंटेंस में ये खबर बन रहा था, ये खबर बन रहा था और ये पूरा मुब्तदा बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे ये मंसूब नहीं था ना, अगर मंसूब होता तो फिर हम कहते कि इसकी तमजीज है, मरफू आ रहा था। तो अच्छा यहाँ पर देखें आप, कमीसन, ये आपकी तमजीज हो गई, इंदा का या इब्राहिम, तो कम कमीसन इंदा का ने तो खबर ही बनना है, और कम जो है ये क्वेश्चन के लिए, और कमीसन क्या है, ये आपका तमजीज है। या इब्राहिम ये हर्फ निदा है और ये मुनादा है। चलिए अगला सेंटेंस पढ़िए। इंदी रियालानी व खमसतु कुरूशिन, कुरूशिन, मेरे पास रियाल है, दो रियाल है, 2 रियाल है, और 5 कुरूशिन क्या मैम, कुरूश कॉइन्स जो होते हैं। हाँ, अच्छा, रियाल जो जैसे चेंज होता है ना, डॉलर का भी चेंज होता है ना, पाकिस्तानी रुपीस का भी इंडिया पर उनका चेंज होता है, तो वो जो चेंज होता है ना कॉइन्स, उनको कुरूश कहते हैं। जैसे फलूस भी होता है ना, फलूस भी बोलते हैं, तो फिल्स की जमा जो होती है फलूस होती है, अगर कोई अरब में रहता है तो उसको पता होता है, तो कुरूश भी वही चीज है, कॉइन्स यानी कहते हैं। अच्छा आगे। फी हाज़िही हाफिलती अशरत रुकाबिन, इस बस क्या बोलते हैं, बस में, इस बस में
इस बस में 10 रुकाब है। रुकाब मतलब क्या? रुकाबिन, अशरतु रुकाबिन, राकिबुन की जमा है। राकिब किसको कहते हैं? सवार, राइडर, राइडर को कहते हैं, सवार को कहते हैं। सवारियां होती है ना बस में, रुकाब कहते हैं उनको। अच्छा, तो इस बस में 10 सवारियां हैं। पैसेंजर्स कर लें, पैसेंजर्स कर लें। पैसेंजर्स, हाँ बेटर पैसेंजर्स। एक पैसेंजर और जमा, और दो होंगे तो राकिबानी हो जाएंगे, है ना, और जमा होंगे तो रुकाबिन हो जाएंगे, और ये जमा मुकस्सर बन रही है। ठीक है, राकिब की जमा मुकस्सर बन रही है। तो अब देखें, फी की वजह से आपका जो है यह हाजी ही, तो वैसे ही हाजी ही होता है ना, तो ये फी हाजी ही, तो अब ये जब मजरूर हुआ है ये, तो ये भी आपका मजरूर हो गया आगे वाला। तो इसका एराब जो है आपने इस वाले से देखना है, बदल से देखना है। अगर ये मजरूर आ रहा है तो ये भी मजरूर है। ठीक है, तो ये मजरूर वैसे, ये तो वैसे ही हाजी ही होता है ना, लेकिन अगर आप हाजा भी हो, ठीक है, तो आपका ये वाला मजरूर है तो ये वाला भी मजरूर हो जाएगा। तो ये आपकी चीजें जो हैं फिर आप पॉन्डर करेंगे तो इंशाल्लाह समझ में आएंगे। चलें आगे, हम बाद में पढ़ेंगे, पता नहीं भी कितना लेसन देख लेते हैं, बस थोड़ा ही रह गया, लेकिन इसको हम नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे, फिर बहुत ज्यादा हो जाता है। जिन लोगों ने मेरे साथ नहीं पढ़ा ना सिस्टर्स, वो लोग खुद से पढ़ें, ठीक है ना, रिकॉर्डिंग सुने या किताब लेके उसको खुद से ऊंची आवाज में रीडिंग करें, और कोशिश किया करें थोड़ा सा जो हमने पढ़ना होता है ना क्लास में, उसको पहले से पढ़ के आया करें, ताकि आपकी जुबान चले, मीनिंग ना भी आए लेकिन रीडिंग यहाँ पे लिखा है अल जैबु। जैबु का माना क्या हुआ? जेब होती है ना, पॉकेट। अच्छा, अरबी में हम जेब कहते हैं ना, उर्दू, अरबी में जेब कहते हैं। जेब होता है, मैं बता देती हूँ आपको मीनिंग। हाफिला का मतलब तो बस है। अब ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? ये मुअन्नस है या मुज़क्कर है? इसका वाहिद क्यों मुअन्नस है? क्योंकि इसका वाहिद मुअन्नस है। ठीक है ना। अब ये जो है, ये इसके ऊपर गोल ताल लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये क्या है? मुज़क्कर है, क्योंकि इसका वाहिद मुज़क्कर है। अच्छा, बिलादुन कंट्रीज, और बलद क्या होता है? एक कंट्री को कहते हैं। उरुपा जो होता है ये यूरोप होता है, यूरोप को कहते हैं। फरंसा फ्रांस को कहते हैं। मुख्तलिफतुन जो है ये आपका उर्दू में बोलते हैं। निस्फुन जो होता है ये आपका हाफ होता है, और बाकी कुर्श जो है ये मैंने आपको बताया, इसकी जमा कुर्श होता है, ये किर्श नहीं होता। अल कुर्शु की जमा होती है कुरूश, और अल यौमु अय्याम, ये भी जमा मुकस्सर है, ये भी जमा ज्यादातर जो आ रही है मुकस्सर। राकिब की जमा रुकाब, राकिब होता है पैसेंजर और रुकाब पैसेंजर्स। कदीम कुदामा, ये भी जमा मुकस्सर है, कुदामा। जैब जुजूब, जैसे हम बोलते हैं ना उर्दू में ऐब, ऐब क्या होता है? ऐब हमारे अंदर ऐब नुक्स होता है, तो उसकी जमा क्या बनती है? उजूब बनती है ना। इसी तरह ये आपका जैब से क्या बना हुआ है? जुजूब बना हुआ है। शैखुन से, शैख से शुयूख बनता है ना जमा, तो शैखुन भी इसी तरह है, शैखू तो शुयूख बनता है। तो ये लफ्ज मिलते जुलते होते हैं। इसी तरह दैफुन से दुयूफ बन जाता है। दैफ, दैफ किसको कहते हैं? किसी को याद है दैफ किसे कहते हैं? दैफ किससे कहते हैं? एक होता है ज़ईफ। ज़ईफ तो जो होता है वो तो आपका ऐन से होता है ना, मेहमान को बोलते हैं, तो उसकी जमा दुयूफ होती है। दुयूफ बिल्कुल इसी पैटर्न पे बनेगा, दुयूफ। तो ये 4-5 लफ्ज जो है ना सेम बनते हैं। जैब जुयूब, ऐब उयूब, और दैफ दुयूफ, और शेख शुयूख। अच्छा, और अल्मानिया जर्मनी को कहते हैं। होलंदा, आज हमने नया वर्ड पढ़ा, हॉलैंड को कहते हैं। फरंसा जो होता है, ये फ्रेंसा नहीं होता, फरंसा होता है, ये फिरंसा पढ़ा नहीं जाता। मलेशिया और निस्फुन का मतलब होता है हाफ। निस्फ, कुरान मजीद में भी निस्फ आता है ना, तो हाफ पारा हो जाता है। कोई क्वेश्चन है तो कर लें।
जी कुरूश किसे कहेंगे? क्रूश जो होता है ना, जो आपका रियाल से छोटा होता है ना, जो उसके रियाल के छोटे जो पार्ट्स होते हैं, जैसे डॉलर्स के भी होते हैं, क्वार्टर होता है, हाँ उसको कहते हैं, हाँ कॉइन्स जो होते हैं क्रूश, यानी फिल्स का फलूस होता है और रियाल का क्रूश होता है, जो छोटे सिक्के होते हैं, कॉइन जो होते हैं। तो इंशाल्लाह आपको मीनिंग बता भी देंगे शायद इंग्लिश में कहीं पे, उसका सही मीनिंग भी शायद आ जाएगा, हम देख लेंगे, यहाँ शायद आ जाए। देखें आप, देखें क्रूश का आ गया ना 1/10 ऑफ रियाल, यानी ये आपका, हमारा यहाँ पे क्या कहते हैं 10 के सिक्के को, मुझे तो पता नहीं है इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये है कि 10 होता है, हाँ नहीं रियाल, कोई यहाँ कनाडा वाला कोई है तो उसको, कनाडा वाले को पता होगा ना 10 सेंट को क्या कहते हैं। अच्छा ये क्वार्टर होता है, लूनी होती है $1 और टूनी होती है $2 और 10 का मुझे नहीं, 1/10 जो होता है रियाल का, उसका मुझे नहीं पता उसको क्या कहते हैं, कभी इतना देखा भी नहीं। तो ये वाला जो है आपका 1/10 जो होता है ये ऑफ रियाल होता है आपका कुर्श, और कुरूश उसकी जमा है, अलकिरशु ही होगा, फिर कसरा डाला है उन्होंने तो अलकिरशु ही होगा, उसकी जमा कुरूश है जो मुकस्सर आ रही है। अच्छा देखें बलादुन कंट्री है, बिलाद, ठीक है, तो आप सिटी नहीं कहेंगे, सिटी जो होगी अलहयू, यहाँ पर आया भी होगा शायद अलहई। कुदामा कदीम की जगह है, राके पैसेंजर होता है, मिन होम का मतलब है ऑफ देम, ऑफ देम यानी उन में से, मिन का मतलब से होता है और उन में से उर्दू में कहेंगे, फ्रॉम देम, फ्रॉम देम। अच्छा जी, सुआल और उर्बा यूरोप है, सुआल होता है उर्दू में, सुआल उर्दू में क्या होता है, सवाल होता है, हम गलत बोलते हैं, हमें सुआल ही बोलना चाहिए उर्दू में भी, लेकिन हम सवाल बोलते हैं, तो सवाल जो है, फिर उर्दू में सुआल बोलेंगे तो लोग बोलेंगे ओ तुम कहाँ से आई हो, ये क्या बोल रही हो, तो सवाल ही बोलें, ठीक है, और अपनी जुबान में जो लफ्ज जैसा है उसको वैसे ही बोलें, और सुआल बोल दें अरबी में, जईबुन जुयूबन पॉकेट, हो गया साहब। निस्फ का मतलब हाफ, कुल्लुकुम का मतलब होता है ऑल ऑफ यू, और कुल्लुहुम का मतलब होता है ऑल ऑफ देम, कुल्लू ना ऑल ऑफ अस। शुक्रन थैंक्स, और कुल्लुन का मतलब होता है ऑल, ठीक है। अल-यौम अय्याम, चलिए ठीक है, दुआ कर लेते हैं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलिए मैंने अपना काम कर दिया, हाँ, मैंने अपना काम कर दिया, अभी आपने अपना काम करना है, ठीक है। इसको दोबारा एक दफे पढ़ना है, रिकॉर्डिंग सुने ना सुने पढ़ें जरूर एक दफा लेसन निकाल के, ठीक है, ऊंची आवाज में। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। एक लेसन और